Sorry we are a bit late, but so we are here again. This is, as you know, the RRC's Public Lecture Series week, which is going on, and this lecture is this year's 2015's last public lecture by RRC. RRC, as you all know, is located in the Central Institute of Education, Delhi University. It was conceptualized to provide opportunities and spaces of interaction between schools and universities in a spirit of mutual collaboration. RRC is built on the understanding that qualitative change in education practices can come only when teachers' conscious effort go into conceptualizing and reflecting on their practice. For doing this, we have a lot of events and things going on, and one of the major thing that we do is the public lecture series, which is an opportunity for faculty, research scholars, young students, and other people to interact with experts of the field from various fields, not only just education, from wider politics as well. So we are humbled and very honored to have Yogendra Yadav sir with us today. And I request my colleague Malvika to introduce the talk and sir. A very good afternoon to everybody. I also apologize for the slight delay that has happened. For today's public lecture, I extend a warm welcome to Dr. Yogendra Yadav, who very kindly found time from his absolutely packed schedule to come here and speak to us. I believe that most of us present here are familiar with Sir and his work, but for those who may not be, I'll briefly introduce him. Dr. Yogendra Yadav has donned multiple hats ranging from that of a psephologist, academic, activist, and a politician. He has been associated with the Lokniti and the Publics and Policies program of CSDS, from where he is on leave at present. He has been involved in the revival of survey-based studies of Indian elections, the renewal of the National Election Study Series, and the creation of the Lokniti network of scholars. He has authored and edited many books, research articles, and magazines on issues pertaining to democracy, electoral politics, and wider politics. He's also putting together a reader on Ram Manohar Lohia. He writes regularly, as we all know, in Hindi and English for newspapers and is a political commentator on television. Dr. Yadav was the chief advisor of the Political Science Textbook Development Team, prepared as part of the National Curriculum Framework 2005, and has served on several policy advisory bodies. Dr. Yadav was awarded the Malcolm Adiseshiya Award in 2008 for contribution to development studies and was the first recipient of the Global South Solidarity Award in 2009, which is given in recognition of outstanding work on the politics of the developing world. He was among the founder members of the Aam Aadmi Party and contested Lok Sabha election from Gurgaon in 2014. Currently, he is involved with Swaraj Abhiyan and Jai Kisan Andolan. As a part of his work with Swaraj Abhiyan, he has been supporting the students' movement against the challenges faced by higher education in our country at the moment. More recently, he has extended solidarity to the students protesting against UGC's move of doing away with the non-net fellowship given to MPhil PhD students from the next academic year and the interference of WTO in higher education. He, along with other members of Swaraj Abhiyan, undertook a Samvedna Yatra through drought-affected regions of 7 states and drew our attention to the conditions of severe malnutrition and hunger in some parts of the country. In the given socio-political context, it becomes imperative to revisit the idea of India and engage with it, which I think this talk would help us do. I know everybody is eager to hear him, so I now invite Sir to deliver the lecture. Thank you very much. Delighted to be here. Delighted to have an opportunity to think and talk about things other than those that I do on a routine basis every day. I'll start with a question. Is there someone in the room who doesn't understand Hindi at all? Hindi. Someone, if I speak in Hindi, I'll not speak only in Hindi, I'll try and mix the two, but is that all right? क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि वो इंग्लिश में बोलते हैं तो लोग बैठ के नोट्स लेने लग जाते हैं,
मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला जिसमें आपको नोट्स लेने की ज़रूरत है, आप आराम से कॉपियाँ अपनी बंद कर दो। और मैं कुछ बात करूँगा तो शायद हो सकता है उसमें से कोई चीज़ आपके दिमाग में अटक जाए, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो कहूँ वो आपकी नोटबुक में ना अटके, आपके दिमाग में अटक जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदी में बोलूँ, बीच बीच में आई ट्रांसलेट a bit into English, so it's not entirely Hindi and certainly not the kind of Hindi that you may have problems with, but I just wanted to ensure that we communicate. पिछले कुछ दिन से या कहिए पिछले कुछ महीनों से हमारे देश में बहस चल रही है टॉलरेंस, intolerance, which occasionally slips into a debate on what is patriotism, what is nationalism, who is an Indian. आमिर खान says something तो सब आमिर खान पे ही चढ़ जाते हैं कि तुमने कह कैसे दिया ये चीज़, है ना। और कहीं एक सेंस है कि कौन पेट्रियाटिक है, कौन नेशनलिस्ट है, कौन इंडियन है। सो मे बी इट्स ए मोमेंट टू रिफ्लेक्ट। कभी कभार मौका मिलता है बैठ के सोचने का, तो हम सोचें व्हाट इज इंडिया, व्हाट डज इट मीन टू बी एन इंडियन, एंड व्हाई शुड वी टेक प्राइड इन बीइंग एन इंडियन। हम आमतौर पे मान के चलते हैं कि ये तीनों सवाल हमें पता ही है ना। लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये तो है ही ना, और कोई जब हमें रोक के पकड़ के पूछता है कि क्यों है, तो अचानक हम देखते हैं कि ना पीछे तो कुछ है ही नहीं। किसी दौड़ में भागते रहते हैं ना, तो किसी ने पूछा क्यों भाग रहे हो, भाई साहब आगे वाला भी भाग रहा है, तो पीछे वाले से पूछा, उसने कहा वो भी आगे वाला भाग रहा है ना। हमारी ज़िंदगी कुछ वैसे ही होती है, हम दौड़ में लगे रहते हैं। हम क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि आगे वाला भाग रहा है। पीछे वाला क्यों भाग रहा है? क्योंकि हम भाग रहे हैं। सबको रोक के कोई पूछे कि भैया क्यों कर रहे हो ये, तो कई बार जवाब नहीं होता। सो मे बी दिस इज द मोमेंट टू जस्ट स्टैंड स्टिल फॉर ए ब्रीफ व्हाइल एंड आस्क आवरसेल्व्स, व्हाट इज इंडिया, व्हाट डज इट मीन टू बी एन इंडियन, why should we take pride in being an Indian? एक आंसर बड़ा साफ है। अगर मैं पूछूं तो बड़ा आसान सा जवाब आएगा। देखिए, आपने मैप नहीं देखा क्या? दुनिया का मैप है, मैप के ऊपर एक जगह मार्क्ड है, उस जगह का नाम है इंडिया, उसमें जो लोग रहते हैं वो इंडियन। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे जवाब है। मगर तीसरा सवाल जरा टेढ़ा है फिर, why should we take pride in being an Indian? It's an accident of birth, isn't it? मैं कई बार मजाक में कहता हूँ कि भाई कोई अर्जी दे के तो पैदा हुए नहीं थे, है ना। अगर एप्लीकेशन दी हो कि आई हैव स्काउटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड अगले जन्म में ये जो इंडिया है ना, मैं आई हैव लुक्ड एट ऑल द कंट्रीज, सर्वेड देम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और अब मुझे लग रहा है कि मतलब हो दुनिया में देव भूमि, पुण्य भूमि और सब भूमि यही है, इसमें ही मेरे को पैदा करना, और ऊपर वाला ओके कर दे आपकी एप्लीकेशन को। सो आई कैन अंडरस्टैंड, देन यू हैव रीजंस टू बी प्राउड कि आपने मेहनत की, ढूंढा, अप्लाई किया। सो लाइक यू गॉट इनटू CIE, यू नो, यू हैव सम रीजंस टू बी प्राउड ऑफ इट। आपने कोशिश की होगी, अप्लाई किया होगा, सिलेक्शन हुआ होगा। ये इंडिया में पैदा होने का तो कम से कम मेरे को नहीं पता कोई सिलेक्शन वगैरह होता हो, तो यू नो इट्स एन एक्सीडेंट। सो व्हाई आर वी सेलिब्रेटिंग दिस एक्सीडेंट? व्हाट इज इट अबाउट दिस? एंड आर वी सेइंग दैट इफ वी वर बोर्न ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर we would be equally proud to be Pakistani, to be Nepali, to be German, to be French? Is it all just that? इससे फालतू कुछ है क्या? कितना होता है? मैं अपने बच्चों के साथ आजकल देखता हूँ, मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में बच्चों को हाउसेज में डिवाइड कर देते हैं, कोई नीति हाउस, कोई प्रगति हाउस, कोई ये 3-4, और जाहिर है ये बिल्कुल लॉटरी से होता है। लेकिन मैं अब देखता हूँ 3-4 साल हाउसेज में रहने के बाद बच्चों की लॉयल्टीज़ बन जाती हैं। ये जो प्रगति वाले हैं ना, ये पढ़े ही वैसे हैं, ये जो नीति की फिर बात ही कुछ अलग है। उनका यार ये तो बिल्कुल आपका लॉटरी से सिलेक्शन हुआ था, ऐसा क्यों? व्हाई यू मेकिंग ऑल दिस अप?
लेकिन होता है ना हम सारों के साथ, हमारी ज़िंदगी में बहुत बार हो जाता है कि जो बिल्कुल शेयर एक्सीडेंट होते हैं, है ना। मान लीजिए अचानक कोई आए, और ये जो आप और इसके बीच में लाइन के उस तरफ तो बहुत ही थोड़े लोग हैं, ये जो लाइन है यहाँ पे कोई रस्सी लगा दे और उसे इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर दे और कहे कि इधर से उधर जाने के लिए वीज़ा करना होगा। अब संयोग से आप उधर बैठी हैं, आप इधर बैठी हैं, लेकिन अगर 20 साल आपको इस लाइन के आर पार रहना पड़ जाए और ये अचानक जैसे बर्लिन में एक दिन रात को दीवार खिंच गई थी, ऐसे दीवार खिंच जाए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 20 साल बाद, आप लोग शायद न करें, बहुत समझदार लोग हैं, आप तो CIE में आए हैं, लेकिन साधारण इंसानों की मैं बात करता हूँ कि 20 साल अगर उन्हें ऐसा रहना पड़ जाए ना, तो वो कहेंगे ये जो लोग हैं ना, इनका कैरेक्टर मैं जानता हूँ, इनका तो स्वभाव ही ऐसा है, इनका तो मामला ही ये है। और इधर वाले कहेंगे वो जो है ना, बस बात ही मत करो उन लोगों की। तो इंसानों के साथ ऐसा हो जाता है। एंड मच ऑफ व्हाट वी कॉल नेशनलिज्म, मच ऑफ व्हाट वी कॉल पेट्रियटिज्म, और ये देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कहीं यही तो नहीं है, या इससे कुछ ज़्यादा है। मुझे कई बार लगता है कि ये जो हमारा नेशनलिज्म है, देशभक्ति है, ये बिल्कुल फुटबॉल क्लब लॉयल्टी जैसी बनती जा रही है कि संयोग से आजकल जैसे हो गया ना, ये IPL में अब हो गया है दिल्ली डेयर डेविल्स, अब उसमें दिल्ली का एक भी प्लेयर नहीं होता आमतौर पे, उसका दिल्ली से कोई संबंध नहीं है, किसी बंदे ने दिल्ली के नाम पे वो कंपनी खरीद रखी है। कोई पुणे के हो गए हैं वॉरियर्स या पता नहीं क्या हैं, कुछ बॉम्बे वाले, चेन्नई वाले आजकल आउट हो गए हैं, लेकिन उसका चेन्नई से कोई मतलब नहीं है ना। मगर धीरे धीरे लॉयल्टीज़ डेवलप हो जाती हैं, लोग स्ट्रांगली महसूस करने लगते हैं। सो इज नेशनलिज्म जस्ट दैट? इज दैट व्हाट वी सीक टू सेलिब्रेट? और अगर यही है सेलिब्रेट करने को, इज इट वर्थ सेलिब्रेटिंग? इज इट रियली वर्थ टेकिंग प्राइड इन? शुड वी, thinking human beings, take pride in an accident over which we have no control? जरा सोचिए इसके बारे में आप। So am I saying that there is nothing to feel proud of being Indian? अगर आपकी डेफिनेशन इंडिया और इंडियन की ये है जो मैंने पहली बार बताया, तो फिर मैं कहूँगा इसमें कोई बहुत प्राइड की चीज़ नहीं है। हाँ, एक सॉफ्ट किस्म का प्राइड आप ले सकते हैं, प्राइड भी नहीं, उसको प्राइड उसके लिए गलत शब्द है, एक अफेक्शन होता है। हर इंसान का एक अफेक्शन होता है कुछ चीज़ों के प्रति। आज भी मेरे से अगर आप में से कोई कह दे मैं गंगानगर में था, मैं एकदम रुकूंगा जहाँ पे भी हूँगा, अच्छा गंगानगर में थे, घर कहाँ घर था, क्या था, है ना, क्योंकि मैंने अपना बचपन उस शहर में बिताया, छोटे से शहर में। कोई भी गंगानगर का नाम लेता है, मुझे एकदम कुछ घंटी बजती है मेरे मन में, उससे एक विशेष स्नेह पैदा होता है। या जो अक्सर लोग कहते हैं कि, और जिससे बाकी लोग बहुत चिढ़ते हैं कि अच्छा दाल में वो बात नहीं आई जो माँ की दाल में होती थी, माँ जैसे बनाती थी वो चीज़ नहीं आई। जब आप कहते हैं कि मेरी माँ का बनाया हुआ खाना, जब आप कहते हैं मेरे बचपन का शहर, जब आप कहते हैं मेरा गांव, उसमें आप उसके प्रति जो आपका लगाव होता है, जो अफेक्शन होता है, उसमें आप ये क्लेम नहीं कर रहे कि दूसरे गांव से बेटर है। कई लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं। जब मैं कहता हूँ कि मेरी माँ का बनाया हुआ खाना वैसी बात नहीं आई जैसी माँ बनाती थी, उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ माई मदर इज़ द ग्रेटेस्ट शेफ ऑन अर्थ, और मैं उसका कोई कंपटीशन नहीं करवा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारी माँ अच्छा खाना नहीं बनाती है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मेरे लिए मेरी माँ के खाने का जो मतलब है वो दुनिया की किसी और चीज़ का मतलब नहीं है। नाउ that's a kind of an affection which is not pride, which is not competitive pride, which cannot lead to me better than you syndrome. तो अगर हमारे नेशनलिज्म की डेफिनेशन सिर्फ ये है, अगर हमारे इंडिया की डेफिनेशन टेरिटोरियल और ज्योग्राफिक है, इंडियन होने का मतलब उस टेरिटरी के अंदर पैदा होना है, तो फिर हम एक इस सॉफ्ट किस्म का अफेक्शन तो रख सकते हैं जो नेचुरल है, जो हमेशा होगा। आप उसे चाहें न चाहें, आप न्यूयॉर्क के सबब में घूम रहे हो और अचानक आपको कोई ऐसा लगे जिसको आपको लगे अच्छा है तो शायद इंडिया से है,
एकदम आपके मन में कुछ होता है, उससे मिलने की इच्छा होती है, बहुत नेचुरल सी चीज़ है, इसमें कुछ भी हार्मलेस वो और वो इच्छा ख़त्म नहीं हो जाती जब वो पाकिस्तान से निकलता है। आपने जिसे इंडियन सोचा, अक्सर विदेश में ऐसा होता है, आपने सोचा इंडियन, वो निकला पाकिस्तानी, उससे आपका अफेक्शन ख़त्म नहीं होता, आप फिर भी बैठते हैं, गप करते हैं, बात करते हैं, क्योंकि आप एक ज़ुबान उससे शेयर करते हैं। Now that's one part of it. So if our definition of being an Indian is a territorial definition, then we have no substantial reasons to be proud. We have reasons to have certain harmless affection for this territorial entity where we are accidentally placed. Nothing more, nothing less. लेकिन एक और दूसरा तरीका है जिसमें वी कैन हैव गुड रीजंस टू बी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन, बट देन आवर डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज इंडिया एंड व्हाट डज इट मीन टू बी एन इंडियन हैज टू चेंज. I'll try and persuade you today that second route is worth taking. कि इंडिया और इंडियन होने की एक डेफिनेशन है जो अलग है, थोड़ी सी डिफरेंट डेफिनेशन है, और उस डेफिनेशन में हम सब ऑटोमेटिकली इंडियन है नहीं, हमें इंडियन बनना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट करनी पड़ेगी, बट देन वी कैन बी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन. व्हाट इज इट? My suggestion is that we should identify India with an idea. India is an idea. अब देश कोई आइडिया होते हैं? शायद नहीं होते. आइडियाज़ का पासपोर्ट तो नहीं बनता कि आप ये ईस्ट हो या नहीं, ये पासपोर्ट निकालो, बिना पासपोर्ट वाला है आइडेंटिटी. लेकिन अगर आप इंडिया को एक आइडिया के रूप में देखने को तैयार हो तो फिर इंडियन होने का कुछ गहरा मतलब हो जाएगा. उस आइडिया को सब्सक्राइब करना, उस आइडिया को यू हैव टू लिव अप टू दैट आइडिया, और देन यू कैन बी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन. बट देन नॉट एवरीवन हु इज सिटिंग इन दिस रूम वुड बी इंडियन. नॉट एवरीवन हु हैपेंस टू हैव एन इंडियन पासपोर्ट विल बी एन इंडियन. And it's not necessary that those who represent India in international conferences would be Indians. Okay, let me try and persuade you of this second route. तो अब जब मैं बात बोलूँगा वो इस second route के बारे में है. What is this alternate way of looking at India? जब भी हम कहते हैं कि भारत क्या है, हम 5000 साल पहले परंपरा इस सब की बात करते हैं, वो शायद गलत नहीं है, मेरा उस बातों से कोई ख़ास झगड़ा नहीं है, लेकिन मुझे अक्सर महसूस होता है कि हम आप आज की अपनी आइडेंटिटी उन 5000 साल में तलाश नहीं कर सकते. हम इंडियन होने की आइडेंटिटी को आज प्रेजेंट और फ्यूचर से लिंक कर सकते हैं. सो आई विल ट्राई एंड परसुएड यू दैट इंडिया is a combination of three ideas. There are three ideas which are global in its origins and in its implications, but which happen to have undergone a crucial transformation in this country called India. तीन विचार हैं. ये तीनों ही ना तो भारत में पैदा हुए शायद, न ही सिर्फ भारत के लिए बने हैं, लेकिन ये तीनों विचारों का एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ संयोग से जिस देश में हम बैठे हैं वहाँ. और वो तीनों विचार ऐसे हैं जिनकी पूरी दुनिया को ज़रूरत है आज. अगर उन तीन विचारों के साथ हम जुड़ें और इंडियन होने के मतलब को उन तीन चीज़ों से जोड़ सकें, then we know what it means to be an Indian, and then we have answer to why we should be proud of being an Indian. Okay, now I'll end the suspense if there is any and simply enumerate it. Democracy, development, diversity.
3 Ds याद करने के लिए आसान हो जाता है ना, ऐसी कोई चीज़ हो तो, इसीलिए आपको नोटबुक की ज़रूरत नहीं है। डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, डेवलपमेंट। पहला आपका रिएक्शन होगा उफ, इसमें क्या सरप्राइज़ की बात है, और दूसरा ये होगा व्हाट इज़ इंडियन अबाउट दीज थिंग्स। डेमोक्रेसी हमें कोई भी किताब बताती है ग्रीस से शुरू हुई थी, अब हो सकता है शुरू ना हुई हो, दुनिया में बहुत कई जगह शुरू हुई थी, लेकिन हमारी किताब कहती है कि ग्रीस से शुरू हुई थी। कभी कभी हम उसमें कॉम्पीट कर भी लेते हैं, नहीं हमारा भी लिच्छवी गणतंत्र था और ये सब था, लेकिन हम जानते हैं कि 20वीं सदी में हिंदुस्तान में जब डेमोक्रेसी आई, हम किसी लिच्छवी गणतंत्र की नकल नहीं कर रहे थे, हम सीधे सीधे यूरोप में जो चीज़ें उस वक्त हो रही थी उससे ले रहे थे। सो डेमोक्रेसी तो यूरोप से आई। डेवलपमेंट का विचार, ग्रोथ डेवलपमेंट के जितने पैराडाइम है वो तो सीधे सीधे यूरोप से आए हैं। और ये जो डाइवर्सिटी में कम से कम जो सेकुलरिज्म है वो भी हमारे देश में सीधे विदेश से आया, सेकुलरिज्म, एटलीस्ट हम मानते हैं ऐसा, अभी मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा। सो आप कह सकते हैं कि ये तीनों में विचार तीनों अच्छे हैं, लेकिन इसमें इंडियन क्या है भाई? मैं बताता हूँ एक एक करके इन तीनों में क्या इंडियन है और क्यों हम उसे आइडिया ऑफ इंडिया से लिंक कर सकते हैं और करना चाहिए। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, एज आई नोटेड, अब वो ग्रीस से आया हो ना आया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मॉडर्न रिसर्च वगैरह बताती है एक्चुअली इसका ग्रीस से लंबा चौड़ा लेना देना नहीं है, ये सब पोस्ट फैक्टो मेमोरीज़ का रिकन्स्ट्रक्शन है। कई चीज़ों को हम पास से जोड़ लेते हैं, जैसे हम चाहें तो आज अपने आप को लिच्छवी गणतंत्र से और वैशाली के गणतंत्र और मगध से जोड़ सकते हैं, लेकिन ये उसी तरह के कनेक्शन थे जो यूरोप ने बनाए थे अपने पास से। जो भी हो, यूरोप में पिछले 200-300 साल से ये एक पॉलिटिकल फॉर्म डेवलप हो रहा था डेमोक्रेसी का, और जो आज़ादी के आंदोलन में हमारे नेताओं में एक समझ बन गई थी कि हाँ ऐसा ही हमें बनना है, और जो हिंदुस्तान में लागू हो गया। एक चीज़ हुई जो हिंदुस्तान में हुई, हिंदुस्तान से पहले कभी नहीं हुई थी। So the idea of democracy was considered a very dangerous idea. Those at the top feared democracy. आज डेमोक्रेसी बिल्कुल दाल भात जैसी हो गई है, कोई सोचता ही नहीं उसके बारे में। लेकिन आज से 100-200 साल पहले बड़ा खतरनाक विचार हुआ करता था डेमोक्रेसी कि एक दिन ऐसा आ जाएगा जो मतलब बिल्कुल ये सड़क पे चलते हुए लोग हम पे राज करने लगेंगे, ये कैसे हो सकता है। आप में से कोई बिहार से आए हों तो आप शायद समझ सकते हो, बिहार या देश के उन राज्यों में जहाँ कुछ भी सामंती अवशेष बाकी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आज से 25-30 साल पहले बिहार में जैसा लगता था कि अच्छा ये लोग वोट डालेंगे, हमारे को सीधा करेंगे, ये लोग राज में आएंगे, गद्दी पे बैठ सकते हैं कोई, ऐसा विचार हुआ करता था डेमोक्रेसी। इतना विचित्र और इतना खतरनाक विचार हुआ करता था। इसलिए यूरोप में जब डेमोक्रेसी आई तो वो बहुत छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में, बिल्कुल होम्योपैथी की जो छोटी छोटी डोजेज होती है ना, उसमें आई ये डेमोक्रेसी। और यूरोप में, वेस्ट में लोग मान के चलते थे कि डेमोक्रेसी जो है वो गरीब और अनएजुकेटेड लोगों के लिए बनी नहीं है। सो इट वॉज एग्रीड बाय ऑल डेमोक्रेटिक थियोरिस्ट्स that democracy could not be practiced in conditions of poverty, disadvantage and lack of education, lack of formal education. When India became independent 1947, हमारे यहाँ लिटरेसी रेट कितना था? शायद 30-32% था, इतना ही था रफली, है ना? इवन लेस प्रॉब्ली, है ना? एटलीस्ट 70% लोग हमारे बिल्कुल प्योर इलिटरेट थे फॉर्मल टर्म्स में। और उस वक्त किसी को भरोसा नहीं था कि डेमोक्रेसी ऐसे देश में लाई जा सकती है जिसमें 70% लोग अपना नाम लिखना नहीं जानते थे। उस ज़माने में लोगों ने किताबें लिखी थी। जब 1952 का एक्सपेरिमेंट, 1952 में भारत में पहली बार जब चुनाव हुआ तो लोगों ने इस पे लिखा, कमेंट्री की कि ये सब नेहरू के दिमाग का फितूर है, 2-4 साल में उतर जाएगा। क्या कहाँ का एक्सपेरिमेंट कहाँ चला रहे हैं, इन्हें पता भी है कौन सी यूरोप की चीज़ ला के यहाँ पे चला रहे हैं, ये हो नहीं सकता, फेल हो जाएगा ये।
लेकिन वो उस सेंस में फेल नहीं हुआ। हम सब आज डेमोक्रेसी की कमियां गिनाने में पीछे नहीं रहते, हम सब गिनाते रहते हैं। बट द फैक्ट इज दैट द डेमोक्रेटिक experiment in a minimal sense, in the minimal sense of elections being held regularly and governments being elected according to the way in which people have voted, that experiment worked. India was the first country in the world where this experiment of democracy being inaugurated at a large scale in a country with deep deprivation, with the deprivation and lack of education. In that sense, India democratized the idea of democracy. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गरीबी को बनाए रखना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों की लिटरेट ना होना बहुत कमाल की चीज़ थी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, भारत में डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट होने से पहले लोग मानते थे कि डेमोक्रेसी वो खेल है जो कि अमीर और पढ़े लिखे लोग खेला करते हैं, साधारण लोगों के बस का एक खेल नहीं है। India was the first place in the world that made it possible for people to think that democracy could be truly universalized. That is India's contribution to the history of democracy. In that sense, democracy in India democratized the idea of democracy. And two, India took the idea of democracy in the direction of Swaraj. ये जो स्वराज का विचार था, स्वराज का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि अंग्रेज चले जाएंगे, हिंदुस्तानी राज करेंगे। स्वराज का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि जनता इलेक्ट जिसको करेगी वो राज करेगा। स्वराज का मतलब ग्राम स्वराज तक पहुंचा, यानी कि अंतिम व्यक्ति, गांव की सभा राज कर सकती है, गांव के लोग तय कर सकते हैं कि उनके गांव में क्या होगा। ऐसा होता नहीं है हिंदुस्तान में। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें एक्चुअली हो गई हैं, but many a times you lead with ideas, and I'm at the moment speaking about an idea. I'm not speaking about our real achievements. Our achievements in terms of development are absolutely terrible. लेकिन अभी मैं ideas की बात कर रहा हूँ. So India democratizes the idea of democracy and takes it in the direction of grassroots democracy, in the direction of participatory communitarian democracy, जो स्वराज का idea है. That's one. This idea has great global relevance today. दुनिया भर के लिए, पूरी दुनिया में जहाँ डेमोक्रेसी आज भी अनफोल्ड कर रही है, इन दोनों आइडियाज़, इस आइडिया की, डेमोक्रेसी के इस वर्शन की बहुत सख्त ज़रूरत है. सेकेंड, द आइडिया ऑफ डाइवर्सिटी. हम अक्सर कहते हैं सेकुलरिज्म का आइडिया तो विदेश से आया, सही बात है, लेकिन अब हमारी पूरी रिसर्च समझ हमें बताती है कि हमने सेकुलरिज्म का आइडिया लिया तो सही विदेश से, लेकिन हमने उसे अपने तरीके से बदल लिया. ये हिंदुस्तानियों का एक वो होता है ना, हर चीज़ को हम ले आते हैं बाहर से लेकिन उसे बदल देते हैं. अब चाइनीज़ नूडल्स, किसी बेचारे चाइनीज़ को खानी पड़ जाए हमारे यहाँ पे करोल बाग में, तो उसका क्या हालत होगी आप सोचिए. और हमने ब्रेड को लाके भी उसका ब्रेड पकौड़ा बना लिया, है ना. But there's something beautiful about it. You see, this is how cultural innovations take place in history. अब वो ब्रेड पकौड़ा कौन अंग्रेज आके कहेगा कि ये चीज़ थी जो हमारे यहाँ से शुरू हुई थी. बेचारे को समझ में नहीं आएगा और वो खा नहीं सकेगा उसे, है ना. दुनिया में बड़े बड़े इनोवेशंस ऐसे होते हैं. These are beautiful innovations. These are great innovations. हमने सेकुलरिज्म के साथ यही किया है. सेकुलरिज्म को लाके अपने कॉन्टेक्स्ट में बदला. इसके ऊपर प्रोफेसर राजीव भार्गव वगैरह ने काफ़ी लिखा है. उन्होंने कहा है हमारा वेस्ट का जो सेकुलरिज्म था, फ्रेंच सेकुलरिज्म वगैरह, ये डिनायल का सेकुलरिज्म है. रिलीजन से कोई लेन देन नहीं, दूर रहना है, कोई हाथ नहीं लगाना इनको. हमारा सेकुलरिज्म जो था वो प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस का सेकुलरिज्म था, ऐसा वो कहते हैं. इसकी बाद में व्याख्या हम करते रहेंगे, लेकिन हमने, ये बड़ा हिंदुस्तानी स्टाइल है कि हम कहते हैं कि हाँ हम बिल्कुल वही चीज़ कर रहे हैं जो आप कह रहे हो, पर हम चुपचाप से अपनी चीज़ों को बदल लेते हैं.
So our secularism was actually a different kind of secularism, जिसमें सर्वधर्म धर्म संभाव की बात भी आती है। लेकिन मैं एक दूसरी डायरेक्शन में इसे ले जाना चाहता हूँ। हमारे सेकुलरिज्म और इस सब से जुड़ी हुई जो चीज़ है, क्योंकि खाली मैं सेकुलरिज्म के बारे में बात नहीं कर रहा यहाँ, हमारे यहाँ एक ऐसा विचार आया जो यूरोप के नेशन स्टेट की हिस्ट्री में कभी नहीं आया था। पूरा यूरोप का जो नेशन स्टेट का विचार है, वो नेशन स्टेट का विचार इस आधार पे आया है कि कल्चरल बाउंड्रीज और पॉलिटिकल बाउंड्रीज कोइंसाइड करनी चाहिए। यानी कि आपके यहाँ यदि एक भाषा है, एक भाषा धर्म को मानने वाले एक कल्चर के लोग हैं, तो उन कल्चर के लोगों की अपना एक स्टेट होना चाहिए। वो एक नेशन है, उनका एक अपना स्टेट होना चाहिए। पूरे यूरोप में जितने भी स्टेट्स बने हैं, यूरोप का साइज़ कितना है? इंडिया से ज़्यादा बड़ा नहीं है। उस यूरोप पे कितने देश हैं? शायद 25-30 देश हैं, अब ज़्यादा भी हो गए होंगे। क्यों बने हैं? क्योंकि उन्होंने बिल्कुल वैसा ही, जैसे उड़ीसा के लिए कहें हम कि अच्छा उड़ीसा को अलग देश होना चाहिए, आंध्र प्रदेश को अलग देश होना चाहिए, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग देश नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एक ही भाषा बोलते हैं, और इसको होना चाहिए तमिलनाडु को, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। So the history of European nation states is a history of trying to match cultural boundaries with political boundaries. And why? Because of a deep, deep conviction that political units, state, must be internally homogeneous in terms of culture. यूरोप में बेसिक विचार ये था कि राज्य मतलब पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो होनी चाहिए, उसके अंदर लफड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। यानी कि एक पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर एक ही तरह के लोग हों, एक ही भाषा बोलने वाले हों, एक ही एंसेस्ट्री हो, कल्चर हो, रेस भी एक हो तो बहुत अच्छा, धर्म भी एक हो तो कमाल है। उससे निकला हुआ है विचार। ये विचार है होमोजेनाइजिंग नेशन स्टेट्स का विचार है। और अगर आपको यूरोप की हिस्ट्री पढ़ने का मौका कभी मिले तो आप देखिए कि 500 साल की यूरोप की हिस्ट्री बेसिकली ये है कि यूरोप अपनी जो डाइवर्सिटी है उससे मुक्ति पाने की कोशिश कर रहा है, तरह तरह से कोशिश कर रहा है। और वो कोशिश मतलब स्पेन में जो मुसलमान रहते थे वहाँ से शुरू होती है और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक चलती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जो बहुत कम बातें हमें बताई जाती हैं उनमें से एक ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब फाइनली सेटल हो गया, उसके बाद लाखों लोगों को एक देश से दूसरे देश में भेजा गया पॉपुलेशन को होमोजेनाइज करने के लिए। और ये वो लोग नहीं थे जो कि वॉर विक्टिम्स थे, वॉर क्रिमिनल्स थे, वो सब नहीं। हर देश ने कहा कि अब चलो बस इस मुसीबत से पार पाओ। ये जर्मन लोग फ्रांस में कर क्या रहे थे, इन्हें निकालो। और ये 500-500 हज़ार साल से जो कम्युनिटीज़ रह रही थी उनको लोगों ने निकाल दिया। पूरे यूरोप में इतना बड़ा ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन हुआ ताकि लोग इस तरह की बाउंड्रीज से मुक्ति पा लें। तो यूरोप का सॉल्यूशन कल्चरल डाइवर्सिटी का क्या था? कल्चरल डाइवर्सिटी है बहुत बढ़िया, हर डाइवर्सिटी को अपनी अलग अलग यूनिट दे दो, उसको अलग अलग स्टेट दे दो। उस स्टेट के अंदर लोग फंसे रह गए तो क्या करें? आपको भारत का उदाहरण दूँ ना मैं, पश्चिम बंगाल के काफ़ी इलाके हैं मेदिनीपुर के नज़दीक जहाँ लोग उड़िया बोलते हैं। उड़ीसा के साउथ के इलाके हैं जहाँ तमिल बोली जाती है। कर्नाटका और महाराष्ट्र का तो पुराना लफड़ा है, उधर इधर कन्नड़ बोलने वाले हैं, उधर मराठी बोलने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पे ये सब चलता है। लेकिन यूरोप का सॉल्यूशन क्या था कि अगर कन्नड़ बोलते हो तो महाराष्ट्र में क्या कर रहे हो, वापस या तो उधर जाओ या इधर सीख लो, मराठी बोलनी सीख लो। This is the history of European nation states, which assumed that in order to be nation, you must adopt one culture, one religion, one language, one race and everything. India was one of the first, possibly the first challenge to this idea. क्योंकि इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो इंडिया ना तो नेशन था ना कभी बन सकता था। अब इंडियंस के पास दो रास्ते थे,
एक तो वो कहें कि कोई बात नहीं है, नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे उन जैसा बनने की। ये भी बहुत इंडियंस ने कोशिश की। कैसे कोशिश करेंगे? सोचो, हिंदुस्तान में पिछले 150 साल से कभी कोशिश हुई है कि इंडिया को बिल्कुल यूरोप जैसा देश बना लें किसी तरह से? कैसे बनाएंगे? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये क्या है? इंडिया को यूरोप बनाने की कोशिश है कि एक भाषा। अब एक भाषा कौन सी? यहाँ तो 40% से ज़्यादा तो कोई एक भाषा बोलते ही नहीं है। इस रूम में तो मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि नॉर्थ इंडियन क्राउड है। कहीं और चला जाऊँ तो हिंदी इज़ ए माइनॉरिटी लैंग्वेज ऑफ दिस कंट्री. Not more than 40% people speak Hindi. So then they simply pick up the largest and say, okay, we have to have one language. अभी भी लैंग्वेज की डिबेट्स में इतने लोग इतने पैशनेटली बोलते हैं, but we have to have a national language. मैं बार बार पूछता हूँ, but why do we need it? What is the great need for us to have it? You know, the European mindset is so strong that we think we need that. ना सिर्फ ये, हमारे यहाँ तो लोगों ने बाइबल वगैरह की नकल करने की भी कोशिश की, हिंदुइज्म में सेक्रेड टेक्स्ट को ढूंढने की कोशिश की। अचानक 19th सेंचुरी में वेद इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपको बाइबल का मुकाबला करना है। सो द होल अटेम्प्ट वॉज टू ट्राई एंड क्रिएट ए नेशनलिज्म विच मिमिक्ड यूरोप। उनकी तरह का नेशनलिज्म हम बनाएं। 20th सेंचुरी आते आते कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस हुआ, and we see this in towering personalities like Tagore, like Gandhi. इन लोगों ने पलट के पहली बार पूछना शुरू किया, और ये बहुत बड़ी कल्चरल अचीवमेंट थी। इन लोगों ने कहना शुरू किया कि मगर हम तुम जैसे क्यों बने भाई? हम नेशन तो हैं, पर नेशन बनने के लिए हमें तुम्हारे जैसा नेशन बनने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम्हें एक ही भाषा आती है, हमें तो 25 आती हैं, अच्छी बात है ना, हम बाकी 24 को क्यों छोड़ेंगे? I mean, our misfortune is that we were colonized by the most linguistically deficient community in the world. बेचारों को एक से ज़्यादा भाषा बोलनी नहीं आती, दूसरी बोलो तो घबरा जाते हैं, और उन्हें लगता है कि क्या करें, मतलब मगर ठीक है, मतलब वो तो शुरू में आपको लगता था कि नहीं, मेरे में प्रॉब्लम है, मुझे 5 क्यों आती हैं? बाद में आपने कहना शुरू किया कि अच्छा, मुझे 5 आती है ना, एक से कम तो नहीं आती। तो दिस इज द कल्चरल कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल लाइक टैगोर, who bring this confidence, and this is where they begin to say, my diversity is my strength. We can be a nation without being uniformed, without being homogenized. We refuse to be bulldozed. Our differences are our strength. ये जो फ्रेज है ना, जो सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं, लेकिन जब बना होगा तो बड़ा सुंदर फ्रेज होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये विचार, ये जब फ्रेज बन जाते हैं, शुरू में बहुत पावरफुल थॉट होता है उसके पीछे, बार बार वो बोलते 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 वो पत्थर जैसे बन जाते हैं फिर। बट दिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाज सच ए पावरफुल आइडिया दैट यू कुड हैव ए मॉडर्न नेशन स्टेट विच वुड सेलिब्रेट इट्स डाइवर्सिटी। एंड माइंड यू, इट्स नॉट जस्ट ए कल्चरल अचीवमेंट, it is a political achievement. बाकी देशों ने सोचा, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, then I'll go on to the third thing. श्रीलंका। श्रीलंका में तमिल बोलने वाले भी हैं, सिंगला बोलने वाले भी हैं। आज से 40 साल पहले, 40 नहीं 60 साल पहले श्रीलंका में अचानक कुछ लोग खड़े हुए जिन्हें लगा कि देश की एकता को खतरा है, 2 भाषाएं क्यों हैं इसमें, एक भाषा होनी चाहिए। और वो कौन सी होगी? सिंगला। नेचुरली ज़्यादा लोगों की लैंग्वेज सिंगला है। तो उन्होंने डंडा चलाना शुरू किया कि श्रीलंका में रहना है तो सिंगला बोल के रहना होगा। ये मैं हिंदी में मुहावरा बता रहा हूँ, आप समझ सकते हैं क्या हिंदी का मुहावरा है, लेकिन श्रीलंका में ऐसा ही कुछ बोला होगा उन्होंने अपनी भाषा में कि अगर सच्चे श्रीलंका वाले होना है तो सिंगला बोलो, और कुछ भी बोलते हो तो गड़बड़ है, तुम्हें सीधा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नतीजा क्या हुआ? देश में इतनी भयंकर सिविल वॉर हुई, दसियों हजारों लोग मर चुके हैं, देश का वास्तव में मन टूट चुका है। श्रीलंका वास्तव में 2 देश बन चुके हैं। कहने को एक फॉर्मल देश आज बना हुआ है श्रीलंका। श्रीलंका टूटा हुआ देश है। और कैसे टूटा? जोड़ने की जिद के लिए टूटा। ये याद रखिए,
हिंदुस्तान की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ यही है कि हिंदुस्तान में हमने कभी नहीं पूछा कि ये तेलुगु देशम पार्टी तुम कैसे बनाते हो भाई, ये तेलुगु देशम क्या होता है, इंडियन हो या तेलुगु हो, ये सवाल कभी पूछा नहीं हमने, क्योंकि जिस दिन हम ये पूछते टूट जाता। डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना और उसे रेस्पेक्ट करना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया, ये हमारी कल्चर्स में आया, और जहाँ जहाँ हम उस डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट नहीं कर सके वहाँ वहाँ हमने भी प्रॉब्लम्स लिए। नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर, it is not the fact, we've had very serious difficulties in both these areas, not because we practiced diversity and practice of diversity led to these problems. It is our inability to practice our own principles which led to the problems both in Kashmir and in some parts of the Northeast. So, second is diversity. We have given something to the world. There's something unique about it. Soviet Union had much less diversity than India. Today it is 15 countries plus. कितने 15-16 देश तो बन गए हैं उसके. यूगोस्लाविया हमारे असम से बड़ा नहीं है, और जितना हमारे असम में जितनी डाइवर्सिटीज़ हैं उससे ज़्यादा यूगोस्लाविया में नहीं थी. It is now 5 countries. India has this absolutely unique achievement in the world of a formal nation state which packs so much of internal cultural diversity and has still continued with all its flaws to be one nation state. This is the message for the rest of the world, क्योंकि पूरी दुनिया को आज डाइवर्सिटी के साथ जीना सीखना होगा. हमारे यहाँ जितनी डाइवर्सिटी है वो पूरी दुनिया में धीरे धीरे बन रही है. यूरोप को टर्क इमिग्रेंट्स के साथ रहना सीखना होगा, फ्रांस को उन लोगों के साथ सीखना होगा जो हिजाब पहनती हैं, सबको सीखना पड़ेगा. और वहाँ फ्रेंच मॉडल नहीं काम आ सकता. अगर फ्रांस को अगले 100 साल सीखना है तो फ्रांस फ्रेंच सेकुलरिज्म के हिसाब से नहीं बच सकता, उसे इंडियन मॉडल अडॉप्ट करना पड़ेगा. दिस इज समथिंग टू बी डीपली प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन. तीसरी चीज़, डेवलपमेंट. अब आपको लगेगा कि ये 2 चीज़ होंगे तो हम फिर भी कुछ कह सकते हैं. डेवलपमेंट पे हम क्या दुनिया को बताएंगे, हमारे पास दिखाने को है ही क्या. और सच बात है, आपने बताया, अभी मैं एक ड्राउट अफेक्टेड एरिया से आ रहा हूँ. पिछले महीने हमने यात्रा की कर्नाटका से हरियाणा तक, जितने ड्राउट अफेक्टेड एरियाज हैं, और सचमुच इतनी बुरी हालत है. बुंदेलखंड में जाइए, और मैं किसी से कह रहा था कि अगर आप फ़ोटो में यहाँ पे अफ्रीकन बच्चों को बैठा दो तो आप आराम से क्लेम कर सकते हो कि सब सहारन अफ्रीका है. हर चीज़ वहाँ की सब सहारन अफ्रीका के इंडिकेटर से ख़राब है. अभी हमने जाके और बुंदेलखंड में जाके इतना महसूस हुआ कि नहीं, कुछ बहुत गड़बड़ हो रहा है यहाँ. तो हमने वापस जाके एक सर्वे किया, और वो सर्वे क्या दिखाता है कि, और लोगों से मैंने सिंपल सवाल पूछे, कोई बहुत गहरा सर्वे नहीं था, बहुत क्विक रेडीमेड सर्वे था, कि पिछले 30 दिन में कितनी बार बच्चों को दूध दिया है घर में, पिछले 30 दिन में दाल कितनी बार बनाई है. बुंदेलखंड के साधारण गांव के साधारण लोगों से, सबसे गरीब से नहीं, साधारण लोगों से बात की. 40% हाउस होल्ड में पिछले 30 दिन में एक भी दिन दाल नहीं बनी है. दाल अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग खाना. 30 दिन में एक भी दिन एक कटोरी दाल नहीं बनी है उन घरों में. 60% लोग कह रहे हैं बच्चों को दूध नहीं दिया है उन्होंने. और ये कोई 200 साल पुरानी बात नहीं है, 40 साल पुरानी बात नहीं है, ये आपसे 4000 किलोमीटर दूर की बात नहीं है. ये पिछले महीने का बुंदेलखंड है भारत का. ऐसा भारत दुनिया को डेवलपमेंट में क्या सिखा सकता है? सच बात तो ये है कि शर्म के मारे सर झुका लेना चाहिए हम सबको. 2 हफ्ते पहले प्रताप मेहता ने एक बहुत सुंदर लेख लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में, अगर मिला तो आप सर्कुलेट कीजिएगा लोगों को. उसमें कई चीज़ें कहते हैं. एक जो सिंपल चीज़ कहते हैं वो ये कि यू कैनॉट बी ए ट्रू पेट्रियट unless you can say that you are ashamed of your country in some respects. जब आप कोई भी क्लेम करते हैं, किसी भी किस्म का क्लेम करते हैं, मैं कहता हूँ कि इस कमरे में
पर्याप्त रोशनी है। मैं तभी कह सकता हूँ जब मैं इन प्रिंसिपल ये कहने को तैयार हूँ, अगर अचानक ये सब बल्ब बंद हो जाएं, सब हो जाएं, तो मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि कमरे में बहुत अंधेरा है। अगर मैंने कसम खाई हुई है कि मैं कभी नहीं कहूँगा कि कमरे में अंधेरा है, तो मेरे ये कहने का कि इस कमरे में बहुत उजाला है, इसका कोई मतलब नहीं है। इट्स नॉट ए क्लेम एनीवन शुड टेक सीरियसली, है ना? क्योंकि आपको पता है कि हाँ, अगर अंधेरा होगा तो ये आदमी कहेगा कि अंधेरा है। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि उजाला है तो इसका मतलब है। इसी तरह से जब आप कहते हो मेरे देश में मुझे गर्व है, अगर आपने कसम खाई हुई है मैं अपने देश के बारे में कोई गलत चीज़ बोलूँगा नहीं, इसका मतलब क्या है? आई शुड लाफ इट अवे एंड वॉक अवे। अगर आप ये कह सकते हो, सच्चा देशभक्त वही है जो कह सकता है। और दरअसल हमारे जितने सच्चे देशभक्त हुए हैं उनमें से हर एक ने कहा, एक बार नहीं एक से ज़्यादा बार कहा कि मुझे शर्म आती है, मुझे घिन होती है हिंदुस्तानी होने में, मुझे शर्म आ रही है। जो ये नहीं कह सकता कि मुझे भारतीय होने में शर्म आती है, इसलिए ये नहीं कि भारतीय होने में शर्म है, जो कहता है कि आज यहाँ खड़ा होकर मुझे भारतीय होने में शर्म आ रही है, जो कह सकता है कि ये जो घटना हुई इसको देखते हुए मुझे भारतीय होने में शर्म आती है, जब तक ये नहीं कह सकता उसकी देशभक्ति का कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल फिजूल देशभक्ति है। सो इस तरह से जो डेवलपमेंट में मैं कह रहा हूँ, सच वहाँ बुंदेलखंड में खड़े होके लगता था कि ये दिल्ली में जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, 21st सेंचुरी इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया, ग्रोथ, शाइनिंग से तो आजकल हम डर गए हैं, दूसरे मुहावरे यूज़ करते हैं। इन सब चीज़ों में मुझे लगता था कि, और सच में आप में से कईयों ने किया होगा, नहीं किया होगा तो सबको मैं इनवाइट करूँगा कि कभी बिल्कुल रैंडमली इस देश के किसी गांव में 5-7 दिन बिता के आइए और उसके बाद कहिए कि आपको हिंदुस्तानी होने में कितना गर्व हो रहा है। तो सच बात यह है कि लोगों की डेवलपमेंट, ग्रोथ, इन शब्दों को भी छोड़ दीजिए, लोगों की ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें हासिल करने में हमारा रिकॉर्ड शर्मनाक है। इसके अलावा और कोई शब्द हो नहीं सकता। तो फिर व्हाट इज़ इट दैट वी शुड टेक प्राइड इन? देयर स्टिल इज समथिंग दैट वी कैन टेक प्राइड इन, नॉट इन आवर अचीवमेंट बट इन आवर आइडिया। ये जो अंत्योदय का आइडिया है कि आप वेल बीइंग को उससे नापें कि अंतिम व्यक्ति को क्या मिला। कहीं पे मुझे ग्रोथ नापनी हो, कहीं मुझे देखना हो। गांधी जी ने कभी कहा था ना कि अगर आप कभी भी कंफ्यूज्ड हो तो क्या करो, ज़िंदगी में जिस सबसे कमज़ोर व्यक्ति को मिले हो उसके बारे में सोचो और पूछो कि इस चीज़ से उसे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। बस दैट इज़ द यार्डस्टिक। ये जो विचार है और ये विचार कि अंतिम व्यक्ति की वेलबींग यूरोप के रास्ते की नकल करके नहीं हो सकती। ये विचार कई मायनों में खालिस हिंदुस्तानी विचार है। इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली इंडियन, बट इट इज़ सर्टेनली समथिंग which had its origins in India among other places। ये जो मॉडर्न डेवलपमेंट का विचार है जिसने आज पूरी दुनिया को कॉलोनाइज कर लिया है, हर जगह पे लेके विकास चाहिए जी विकास, इस विकास के सवाल पे सवालिया निशान लगाना और कहना कि अच्छा ज़रूर यही विकास होगा क्या? सारी दुनिया यूरोप जैसी हो जाएगी क्या? सारी दुनिया यूरोप जैसी हो सकती है क्या? सारी दुनिया उतनी बिजली का इस्तेमाल कर सकती है जितना एक अमेरिकी व्यक्ति करता है? क्या पूरी दुनिया में उतनी कार हो सकती है जितनी अमेरिकी लोगों के पास हैं? और अगर पूरी दुनिया ने उतनी कार खरीद ली तो उसको पार्क करने के लिए, उन कारों को पार्क करने के लिए हमें तो एक और दुनिया चाहिए होगी ना। ये सवाल पूछने हिंदुस्तान ने शुरू किए थे। So we don't have reasons to be proud in our achievement on developmental score, but on the idea of development, India started something. The idea that development be measured by the last person, that development must not do violence to nature, that we need to think of future generations, that development must be sustainable, must be humane,
ये विचार हमारे देश में आज से 100 साल पहले आए थे। ये किसी अर्थ समिट से पैदा नहीं हुए थे हमारे देश में ये विचार, ये कहीं पेरिस नेगोशिएशन से नहीं निकले थे। ये विचार इस देश में कुछ सनकी लोगों के मन में आए थे जिन्होंने पहली बार सोचना शुरू किया था, और ये विचार है जिसे पूरी दुनिया को समझना होगा। ये कह सकना कि यूरोप के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते को हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते और ना ही हमें करना चाहिए, ये बहुत करेजियस चीज़ थी कहना। आज भी बहुत करेजियस है ये बात कहना और ये बात समझना। सो these are three things. I'll just go back to what I started with. मैंने शुरू में आपसे पूछा था, what is India? What does it mean to be Indian? Why should we be proud of India, of being an Indian? मैंने कहा था कि अगर टेरिटोरियल डेफिनेशन लें तो पहले 2 सवालों का आंसर देना तो बहुत आसान हो जाता है, तीसरे सवाल का दरअसल कोई उत्तर है नहीं, और इसलिए हमने एक अलग आंसर की शुरुआत की थी। और मैंने कहा था कि टेरिटोरियल डेफिनेशन को छोड़ दीजिए, लेट अस बिगिन टू सी इंडिया एज एन आइडिया। इस आइडिया के 3 कंपोनेंट हैं, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, डेवलपमेंट। इन तीनों चीज़ों में संयोग से जिस देश में हम आज बैठे हैं उस देश में कुछ अद्भुत अनूठे विचार आए पिछले 100-150 साल में, और जो अगले 200 साल की पूरी दुनिया के लिए बड़े रेलेवेंट हैं वो आंसर। हम इसको अगर इंडिया कहना शुरू करें, देन वी नो व्हाट इट मीन्स टू बी एन इंडियन, वी नो व्हाई वी शुड टेक प्राइड इन बीइंग एन इंडियन। मगर एक छोटी सी प्रॉब्लम रह जाती है, अगर ये है इंडिया और इंडियन होना, तो आप हम सब इंडियन नहीं हैं, हमें इंडियन बनना होगा। ये एक्सीडेंटल डेफिनेशन नहीं है ना, टेरिटोरियल नहीं है कि पैदा हुए तो वीज़ा पासपोर्ट मिल गया। यही वाला जो इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया का पासपोर्ट हमें डिज़र्व करना होगा। इसके लिए हमें भी कुछ करना होगा, हमें इन तीनों आइडियाज़ को समझना होगा, इसे इंटरनलाइज करना होगा, इसके लायक बनना होगा, और जो लोग इन आइडियाज़ की जड़ खोदने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ लड़ना होगा। और अगर ये आइडिया, ये डेफिनेशन ठीक है, तो फिर हो सकता है बॉर्डर के उस पार भी बहुत इंडियंस रहते हों। हो सकता है दुनिया का सबसे बड़ा इंडियन नेल्सन मंडेला निकले पिछले 50 साल में, हो सकता है ना। हो सकता है कि हमारे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सज्जन हवाई जहाज में उड़ते हैं, उड़ते ही रहते हैं आजकल, तो वो हो सकता है इंडियन ना हो सकता है ना। मैं नहीं कह रहा कि नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस डेफिनेशन के हिसाब से फिर उन्हें साबित करना पड़ेगा कि वो इंडियन है। देन बीइंग एन इंडियन is not a given thing, it's a challenge. It's a challenge that all of us must live up to. Thank you. Thank you so much, sir. I'm really, this idea of India, now I understand why you wrote this title, that it's not just a given happy birth. No, you got a birth and you got a gift, you're an Indian. और एक बात जो अक्सर हमारे दिमाग में भी गूंजती रहती है कि जब भी गर्व लेने की बात आती है तो हम सीधा 5000 साल पहले जाते हैं। इधर हमारे पास गर्व लेने को कुछ मिलता नहीं है। हमारे पूर्वजों ने ये किया था, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं और फिर इधर कुछ तलाश लेते हैं छोटा मोटा। और इसी बात में जो एक और चीज़ मेरे दिमाग में गूंज रही थी कि उस प्राइड में हमारे पास सिर्फ एक इंडिया होता है। ये इंडिया है, इसमें आप अपनी जगह तलाश सकते हैं तो तलाशिए, इसी में आपको खोजना है अपने लिए प्राइड। और तभी जो सवाल बहुत से दलित स्कॉलर्स ने भी खोजा है कि जो इतिहास आप मुझे दे रहे हैं प्राइड लेने के लिए, क्या वाकई इसमें मेरे लिए प्राइड लेने लायक कुछ है क्या, या एक औरत या एक दलित के लिए उसमें प्राइड लेने लायक कुछ है या नहीं है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आइडिया ऑफ इंडिया उस सवाल का जवाब है कि अगर आप ये आइडियाज़ पे आप रह सकते हैं तो शायद आप प्राइड लेने लायक कुछ कर रहे हैं।
तो थैंक यू सो मच। और मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में चीज़ें गूंज रही हैं, एंड आई ओपन द पैनल फॉर डिस्कशन। तो अगर आप लोगों के पास जो भी सवाल हैं, प्लीज़ लेट अस नो। वैसे सुन जाएगी आवाज? अच्छा, रिकॉर्डिंग, सॉरी। आज जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, हरियाणा में जो कानून चैलेंज किया गया उसको लेकर, तो मुझे लगता है वो आपने जिस तरह से वर्णन किया है भारत का विचार, उससे वो बहुत बड़ा फायदा है मेरी नजर में। आप ये राय है और दूसरी चीज़ मुझे लगता है आपने जिस तरह से बयान किया है, उस बयान से देशभक्त से ज़्यादा देश प्रेम शब्द ज़्यादा सहज लगता है। भक्ति में थोड़ा सा गड़बड़ होती है, भक्ति में आलोचना देश प्रेम ज़्यादा सूट करता है। जी, आपने जो नई बातें सुंदर कही, एक तो राष्ट्र की बजाय देश बड़ा सुंदर शब्द है, मैं अक्सर देश इस्तेमाल करता हूँ। राष्ट्र बहुत ही एक आर्टिफिशियल ट्रांसलेशन है नेशन का, और उसमें वो पूरी जर्मनी वाली फूट है। देश कितना सुंदर शब्द है हमारे यहाँ। जब कोई रिक्शा वाला मंडी में काम करके वापस दरभंगा की तरफ जा रहा होता है तो कहते हैं देश जा ना, वो देश है उसके लिए। तो देश में मल्टी लेयर्ड है, वो सिर्फ नेशन स्टेट की बाउंड्री नहीं है ना। और भक्ति, हाँ, आजकल पिछले 100 साल से हमने इस शब्द को खराब कर दिया है। भक्ति का मतलब बिल्कुल आंख बंद करके अर्चना पूजा, लेकिन भक्ति आंदोलन में तो भक्ति का मतलब ये नहीं था। जिसकी आप भक्ति करते थे उससे झगड़ते भी थे, उससे चुहल भी करते थे, उसको गाली भी देते थे। क्या बहरा हुआ खुदा है, ये कह सकता था ना कबीर। तो आज तो हम कल्पना नहीं करते कि भक्ति करते हुए आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो शायद भक्ति शब्द को हमने बहुत आजकल एक बहुत संकीर्ण अर्थ दे दिया है, और उस अर्थ में हमें भक्त नहीं होना चाहिए। जिस अर्थ में पिछले कुछ सालों से भक्त चल रहे हैं, वो भक्ति तो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन हो सकता है भक्ति की और कई मीनिंग हो जो हमें आपको पता ना हो। प्रेम अच्छा शब्द है ना। जो हरियाणा वाले जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट की आपने बात कही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो बहुत सन्न हूँ, स्तब्ध हूँ उस जजमेंट से। हाउ कैन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री legitimize the idea that people who do not have certain educational qualification cannot become people's representatives? I mean, the reason it's odd. I know I'm speaking in an institution that promotes education, but I'm sure this is not how you wish to promote education. Number one, people do not choose not to be educated. They do not get opportunities to be educated. So you are punishing a victim? I mean, what kind of justice is it? Second, if it is such a wonderful idea, why not apply it to MLAs and MPs? What warped logic is this? कि आप 10वीं किए बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बन सकते हो, लेकिन आप सरपंच नहीं बन सकते। Why? What can possibly be a reasoning behind this? And three, are we serious in saying that formal education equips you to understand people's pains, their aspirations better? I actually do not agree with either of the three. And fundamentally, I think there is a difference between formal education and political education. I find so many people who carry all kinds of degrees, but who are absolutely illiterate about the country they live in. मुझे कई बार ये जो IIT, IIM बड़ी बड़ी डिग्रीज लेके आते हैं, उनको इस देश के बारे में रत्ती भर पता नहीं होता। मैं उनको कहूँगा आप इलिटरेट हैं, आप क्वालिफाइड नहीं हैं इस देश में पंच सरपंच बनने के लिए। अगर आपको ये नहीं पता कि किस मौसम में खरीफ में कौन सी फसल होती है और रबी में कौन सी फसल होती है, देन यू आर इलिटरेट फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ पर्पसेस। तो उस तरह की इलिटरेसी को हम ना देखें। और पॉलिटिकल एजुकेशन जो होती है
वो आपको इतना कुछ समझाती है। और मैं सचमुच कहता हूँ हम सब लोगों को, और मैं ज़्यादातर लोगों, हम सब जो डिग्रीज़ ले रहे हैं, डिग्री से बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता। वो भी नहीं आता जो डिसिप्लिन पढ़ा है। जब मैंने पॉलिटिकल साइंस एमए की डिग्री ली, मुझे कई सारी चीज़ें मैंने एमए में सीखी, और मैं ठीक जिसे अच्छी यूनिवर्सिटी माना जाता था उसी से डिग्री ली थी मैंने हमारे यहाँ। मैंने आखिर में यही कहा कि मुझे कई चीज़ें सीखी मैंने, बस पॉलिटिक्स नहीं आती थी। पॉलिटिकल साइंस की डिग्री थी, पॉलिटिक्स के बारे में ज़ीरो पता था, है ना। तो ये तो बिल्कुल अलग। तो मैं बहुत ही हैरान हूँ इस किस्म के जजमेंट से। और बिल्कुल इस देश में लोकतंत्र का मतलब है कि आपको ऐसे जजमेंट्स को अपोज करने का अधिकार होना चाहिए, विच इज़ व्हाट आई प्रपोज टू डू। आपको तो जवाब देने चाहिए, आप सवाल क्यों पूछ रही हैं? आपकी बात से कुछ याद आया है। जी जी आपकी इतने सहज जीवन से आपने लगता है कि हमारी मन की बात कही है। जी मुझे याद है कि कुछ साल पहले मैंने अपने स्टूडेंट से शायद कई बार जिक्र किया कि इंग्लैंड में वो लोग अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में पेट्रियटिज्म सिखाते हैं। तो वहाँ पर एक स्टडी हुई थी और उन्होंने स्टूडेंट से पूछा, टीचर से पूछा कि जो सिखाया जाता है पाठ्यक्रम, आपके इसके बारे में क्या विचार है, क्या कहना है। और एक बहुत सुंदर चीज़ जो मुझे मिली थी, 12 साल के बच्चों ने कहा था कि आप हमें मत सिखाइए पेट्रियटिज्म, क्योंकि अगर आप हमें ये सिखाते हैं फिर हम अपने देश के बारे में कई चीज़ें नहीं बोल सकते, सोच सकते, समझ सकते जो हमें लगता है कि सही नहीं हुई। जैसे एक उदाहरण एक बच्चे ने दिया कि अगर 1947 में हमारे देश ने कुछ और रवैया लिया होता तो शायद पूरे इस दुनिया की हिस्ट्री या शायद साउथ एशिया में जो हिस्ट्री है शायद अलग ही होती। तो कितना अच्छा एक ख्याल है कि बच्चे खुद ये कह सकें कि अगर पेट्रियटिज्म का ये मतलब है तो हमें मत सिखाएं। एब्सोल्युटली, ऑनेस्टली ये तो इतना छिछला राष्ट्रवाद सिखाया जा रहा है इस वक्त। और इस देश की फ्रीडम मूवमेंट में हमारा नेशनलिज्म कितना गहरा था। ये वो देश है, हम कहते तो हैं टैगोर महान, गांधी महान, अब तो जो मर गए सब महान, लेकिन और ये भी वो भी राष्ट्र के महान भक्त और ये भी राष्ट्र के महान भक्त। लेकिन हमें क्या याद है, टैगोर ने गांधी जी को चिट्ठियाँ लिखी थी, एक नहीं कई, और कहा था गांधी जी को कि ये तुम नेशनलिज्म के चक्कर में क्या फंस गए हो, इतने भले आदमी हो, कैसी बेकार की वाहियात चीज़ों में तुम फंस गए हो। राष्ट्र मेरा देश महान, नेशनलिज्म कितना बेकार विचार है, बचो यार इससे, तुम संत आदमी हो, गलत चक्कर में फंस गए हो। टैगोर ने बार बार में बताया था। और वो टैगोर जिसके लिखे गीत को आज एक नहीं दो दुनिया के देश अपने राष्ट्रगीत के राष्ट्रगान के रूप में व्यवहार करते हैं, उस टैगोर ने किताब लिखी थी कहते हुए कि नेशनलिज्म बड़ी बकवास विचारधारा है। ये इतनी गहरी बहस हमारे देश में हुई, या ये जो पिछले एक महीने से हम बीफ के ऊपर कर रहे हैं चर्चा, गौ हत्या, गौ माता, गौ मांस, इतनी गहरी बहस इस सवालों पे हमारे देश में हुई है, इतनी सेंसिटिव बहस हुई है। और उसके बाद हम इस तरह की छिछली बहस करें जिस तरह की हम कर रहे हैं, और द vulgarity of what is being discussed in the country is astonishing. The vulgarity with which we revisit questions which have been discussed in depth with such care, तो वो है बिल्कुल। एक मायने में मुझे अच्छा लगता है, just to add a different note, कि ये पढ़ा लें अच्छा होगा। मैं बचपन में एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में पढ़ा था, किसी क्रिश्चियन स्कूल में नहीं, खालसा स्कूल में पढ़ा था मैं। और उस खालसा स्कूल में आपका कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी कहता हो, उस खालसा स्कूल में रिलीजियस एजुकेशन कंपलसरी थी, चाहे आप सिख हो या हिंदू हो। और हमारे को एक ज्ञानी जी थे जो आके अरदास और गुट का जो छोटा सा वो होता है वो सिखाया करते थे। और उन्होंने किसी भी एक अच्छे अध्यापक की तरह तय किया हुआ था कि बच्चों को मतलब मारपीट के ही सिखाया जा सकता है। तो अगर आप गुरु नानक की वाणी के स्पिरिचुअल विचारों को ठीक ढंग से उच्चारण न कर पाएँ तो आपकी स्पिरिचुअलिटी को बरकरार रखने के लिए वो आपको यहाँ पे डंडे से मारा करते थे। सो मैंने वो देखा, उसका बड़ा फ़ायदा हुआ, मैं जीवन भर के लिए इनॉकुलेट हो गया। उसके बाद कोई भी रिलीजन की कोई बात कही जाती है तो मेरे मन में एक छलनी सी आ जाती है, which enables me to cure it. So I think these things have consequences which are inoculating consequences at times, and you're cured.
अब उस तरह की रिलीजियस एजुकेशन, मतलब जिससे रिलीजन के नाम पे जो कि प्रपंच वगैरह होता है, वो देख के मुझे उनकी याद आती है, ज्ञानी जी जो मार मार के। मैं उसके बाद, I mean, it took me 10 years to realize what those scriptures were about and how they were such lovely scriptures. But he had nearly sort of extinguished that. तो मुझे लगता है इन्हें सिखा लेने दो पेट्रियोटिज्म, यही असर होगा उसका। मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं मधुबनी बिहार से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि देश में बहुत सारी विचारधाराएं हैं और सब देश को कहीं कहीं बेहतर करने का प्रयास करते हैं, पर अपने धर्म के बारे में ऐसा लगता है कि यथावत ही रह जाते हैं। इसके बारे में आप क्या राय है? अगर हम यथावत रह जाते हैं तो उसका कारण केवल विचारधाराएं नहीं होती। किसी भी विचार को आपको व्यवहार में लागू करना होता है ना। आप कितना भी अंत्योदय की बातें करते रहें, लेकिन जब तक आप बिहार के अंतिम व्यक्ति के साथ बैठ के काम नहीं करेंगे, तब तक अंत्योदय का विचार, उसका जीवन नहीं बदलेगा। तो एक तो ये दिक्कत है। और दूसरा, मैं वैसे आपकी बात से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि 20वीं सदी में हमारे देश में जो विचारधाराएं रहीं वो काफ़ी हमारे संदर्भ से कटी हुई थी। और कम से कम 21वीं सदी में हमें उन 20वीं सदी की विचारधाराओं की लाश ढोते हुए नहीं चलना चाहिए। हमें 21वीं सदी के अपने संदर्भ के लिए अपने विचार स्वयं गढ़ने चाहिए। उसमें से 20वीं सदी के कई विचारों के कई टुकड़े बहुत महत्वपूर्ण होंगे, वो ज़रूर लेने चाहिए। लेकिन वो पूरा जो रेडीमेड पैकेज आता है ना, ये वाला वाद, ये इज़्म, वो इज़्म, मैं हमेशा समझता हूँ कि ऐसा कोई भी रेडीमेड पैकेज दे, एकदम उसका फीता खोलना चाहिए, उसकी रैपिंग हटा देनी चाहिए, डब्बा खोल के कहना चाहिए कि बहुत अच्छी गिफ्ट है, ये एक आइटम बड़ा अच्छा है, ये मैं लूँगा, बाकी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। ऐसा हिम्मत गांधी जी भी करते थे। आपको गांधी जी की सबसे क्रूर बात याद है ना? गांधी जी को किसी ने चिट्ठी लिखी, लंबी सी। गांधी जी ने उसका एक पंक्ति का जवाब दिया, आपकी चिट्ठी में एक चीज़ बड़ी उपयोगी थी, ऑल पेन, वो मैंने बचा ली है। तो ऐसा कुछ कर देना चाहिए कभी कभी। I have a comment and a question actually. Nation states kind of construct themselves on the basis of certain narratives. So they construct narratives around the idea of the nation and the idea of the nation state. And often there are conflicts between those narratives. For instance, people say that the idea of India that you were talking about is a very elitist, liberalist idea of India. And that's the idea of India that they do not believe in. So how do you kind of get these narratives to talk to each other? And how do you counter people who say that this is an elitist idea of India and it's an idea that a very small minority holds in India, and that the other narrative of India, which incorporates India's so-called past and so on, is the real India. How do you get these different narratives to talk to each other? जी, आपने ठीक कहा। द पॉइंट इज़ हाउ डू वी गेट टू टॉक टू ईच अदर, बिकॉज इन ए सेंस इफ द क्वेश्चन इज दैट स्टोरी right or this story right, there's no way of settling this dispute. You have to tell your story nicely, you have to tell your story in a powerful way, and you have to tell it often for that story to trump over the other story. There are stories and there are stories. I think the real trouble is, and I squarely hold the liberal, secular, progressive intelligentsia of this country responsible for this, that I think before independence, we were at least conscious of the fact that we were struggling, we were possibly in a minority, that this idea of India needed to be worked at. So even till Nehru's generation, they are talking about it every day. Just think of Mahatma Gandhi in 1948. 47, 48. People are coming from Pakistan, they're coming uprooted. Just imagine the kind of anger they were coming with. And this old man would speak to them every evening. He would speak, he would talk, he would listen to their pain, he would respond to that. This discursive battle we abandoned
after 1947 because we thought we have the constitution, we have the state, we have the courts. And this arrogance of the liberal progressive mind of this country, that they had won a battle which they actually had not won. And then gradually they started distancing themselves from the common sense of this country. And I think the first rude awakening was 1992 Babri Masjid demolition. Because that is the moment when this liberal secular intelligentsia, people like me, discover that they actually have no language to speak. For me, this was one of the, personally, it was one of the most disturbing moments of my life. Like all secular commentators, on 5th of December 1992, I had announced complacently, कुछ नहीं करेंगे, ड्रामा करते हैं हर बार वहाँ आके, कुछ नहीं होगा, सो जाओ, कल तक सब कुछ ठीक होगा. Next day, you start getting the news that Babri Masjid was demolished, violating the Supreme Court orders, violating everything that this country stood for. It was demolished. And what is worse is when I started talking to my neighbors, those days I used to live in Chandigarh, was teaching in a university, was fed up with Chandigarh as a city and was living on the outskirts. In a colony where most of my neighbors were rickshawalas and breadiwala, tangewala, ye sab the. So I started speaking to them because there was a curfew in the city after that. And you know the response I got? मैंने कहा क्यों जी? राम जी का मंदिर इंग्लैंड में बनेगा क्या? यहाँ बना रहे हैं, क्या बुरी बात है? I had no answer. My liberalism, my secular constitution, this language had no purchase. Next morning, I got the paper. Jansatta mein there was a front page editorial by Prabhash Joshi. One of the reasons why I respected the man so much. He wrote an article, front page editorial, saying, Maryada Purushottam ke naam par kalank. The whole article was about Maryada Purushottam Ram and why what had happened yesterday went against everything that Maryada and Maryada Purushottam stood for. That article gave me the language, that gave me the courage to speak. And that also showed me how much the language that we spoke had emptied out. तो इसलिए मैं समझता हूँ वो जो आपने कहा जो चैलेंज है वो जो नैरेटिव के साथ करने की, नैरेटिव के साथ आप कैसे झगड़ सकते हैं? आप कह नहीं सकते कि ये सच्चा है झूठा है. ये सब कहना तो बड़ी बोगस चीज़ है. राम थे नहीं थे, कोई फ़ायदा नहीं है सब बहस करने का. सवाल है कि लोगों के मन में है. अब उनके मन में जो राम है उससे बात करनी होगी. दैट्स द ओनली वे टू स्पीक. वो हमने छोड़ दिया और वो एक काम है. और कुछ लोगों ने वो काम 1925 में करना शुरू किया था और वो आज भी किए जा रहे हैं. अब वो चाहे निक्कर पहन के करते हैं, कैसे भी करते हैं, लेकिन कुछ तो करते हैं ना. दूसरे लोगों ने कहाँ किया वो काम करना? जब तक वो काम नहीं करेंगे तब तक आप कैसे, जिस बैटल को आप लड़ ही नहीं रहे हो उस बैटल को जीतने की आप उम्मीद कैसे कर रहे हो? That is a battle to be fought. And it's something people like, again I go back to Gandhi ji. Gandhi ji was conscious of the fact. आखिरी दिन तक he said मैं हिंदू हूँ और सनातनी हिंदू. और सारे सेकुलर लोग आज तक उन्हें गाली देते हैं इस काम के लिए. They would have liked him to declare himself secular. I think nothing would have been more tragic for this country. उसने कहा कि मैं सनातनी हिंदू हूँ तो खड़ा रह सका वहाँ पे. So that is a battle to be fought, and I think it's for all of us to fight that. सर मैं रियली सिंगापुर अंत्योदय के संदर्भ में एक सवाल ये है कि एजुकेशन को किस तरह से पब्लिक फूड से प्राइवेट फूड की तरफ खेला जा रहा है, तो इस मसले पर आपकी रिपोर्टिंग है. आपके प्रश्न में ही उत्तर अंतर्निहित है. बात तो सही है कि ये तो शिक्षा आज जो है बाकी सब है नहीं है. हमारे दोस्तों को शायद पूरी पसंद नहीं आएगी मेरी बात, लेकिन मैं कह दूँ वो ये कि एक तो शिक्षा की ज़रूरत इसलिए होती है कि वो आपको इंसान के रूप में बदलती है, आपको दुनिया देखने का नज़रिया देती है, वो सब करती है. दूसरी शिक्षा की ज़रूरत इसलिए होती है कि वो आपको रोज़गार देती है, पैसा देती है, जीवन में कुछ अवसर देती है, छोटा बड़ा बनाती है. इस वक्त हमारे देश में
इंटर जनरेशनल इनइक्वालिटीज़ को ट्रांसफ़र करने का अगर कोई सबसे पावरफुल वेपन है तो वो शिक्षा है। यानी कि बड़े बाप का बेटा बड़ा बना रहे, छोटे बाप की बिटिया छोटी बनी रहे, कहीं दुनिया में ना पहुँचे। इसको डेमोक्रेटिक सेटिंग में इंश्योर करवाने का जो मैकेनिज़्म है उसका नाम शिक्षा है हमारे देश में। और इसलिए शिक्षा के वो जो गहरे आयाम हैं वो तो सब मतलब उसकी सेकंड चैलेंज है। यहाँ तो बिल्कुल एक एलिमेंट्री सेंस में एजुकेशन इज़ बीइंग wielded एज सच ए पावरफुल ऑलमोस्ट फुल प्रूफ मैकेनिज्म। मतलब इससे फुल प्रूफ चीज़ क्या हो सकती है। मैं तो एक दो बार मजाक में कहीं पे स्टूडेंट्स इंजीनियर्स थे तो मुझे लगा इनसे मैं क्या बात करूं, तो मैंने कहा चलिए आपको मैं एक प्रोजेक्ट देता हूं। प्रोजेक्ट ये है कि आपको एक जनरेशन की इनइक्वालिटीज़ को दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करना है और वो भी डेमोक्रेटिक सेटिंग में करना है, वो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से करना है ताकि कोई अनफेयर होने का आप पे इल्ज़ाम भी ना लगा सके। रिज़ल्ट वो का वो निकले, बड़े बाप का बेटा बड़ा हो जाए, छोटे का बेटा छोटा रह जाए, लेकिन ये फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाए और डेमोक्रेटिक सेटिंग में किया जाए। तो कैसे करेंगे? इस प्रोजेक्ट को आप बना के देखिए और इसका आंसर मैं बता देता हूँ। भारत की शिक्षा व्यवस्था जैसा कोई आंसर निकलेगा। इट्स ए परफेक्ट वे टू एंश्योर दिस। तो बिल्कुल ये वो किया जा रहा है। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब सिर्फ वो नहीं है। प्राइवेटाइजेशन के कितने आयाम हैं हमारे यहाँ। सबसे गहरा आयाम तो ये है कि सरकारी स्कूल तो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं लोग। अभी मैंने 2 महीना पहले यूपी का डेटा मैं देख रहा था, प्रथम की रिपोर्ट से ही देख रहा था। वो ये कि 2007 से लेके 2015 के बीच में यूपी में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 31% से 51% हो गई। 7 साल में 20% पॉइंट का डिफरेंस। आई मीन दिस हिस्टोरियंस वुड कॉल, क्या नाम देंगे इस चीज़ को आप? दिस इज़ द एक्सोडस ऑफ द हाईएस्ट वेराइटी। दिस इज़ एम्प्टीइंग आउट ऑफ पब्लिक एजुकेशन। हमारी आंख के सामने सब कुछ हो रहा है। और जिन 3 स्टेट्स में नहीं हो रहा था, 2 स्टेट्स में, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल, उसमें भी कोई खुशी की बात नहीं है। वहाँ पे पब्लिक स्कूल्स बचे रहे, प्राइवेट स्कूल कम खुलने दिए उन्होंने। लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट्स थी, उन लोगों ने कंट्रोल कर लिया, नहीं होने दिया। लेकिन वहाँ प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने वालों की संख्या पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। सो सब तरह का प्राइवेटाइजेशन ये तो हो रहा है। बेसिकली क्या है कि पापा की जेब में जितना पैसा है, ब्रॉडली उस कैटेगरी की शिक्षा आपको मिलेगी। अब उस कैटेगरी में आप थोड़े से ऊपर हो सकते हैं, अपनी पर्सनल एबिलिटीज़ के हिसाब से 2 डिग्री नीचे गिर सकते हैं, लेकिन आप किस परसेंटाइल ब्लॉक में फिक्स होंगे वो पापा के पैसे तय कर देते हैं। सो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग इन द नेम ऑफ एजुकेशन, एंड आई रियली फील that education is the principal challenge of addressing inequalities in our country. And if there is one politics that needs to be done, instead of fighting politics of the older variety on the older terrains, education should be the principal terrain of politics, because that is the way to talk about inequality. Instead of talking in a classical orthodox language, we should speak of this, because this everyone understands. दिल्ली में जो औरत बर्तन साफ करके अपना घर चलाती है, वो भी शिक्षा के महत्व को समझती है। आज वो कुछ कर नहीं सकती उसके बारे में, लेकिन वो जानती है, उसके मन में सपना है कि उसका बेटा एक दिन बाबू बन जाएगा, उसका बेटा एक दिन अफसर बन जाएगा। तो उसको हम कैसे एड्रेस करें, दैट इज़ द चैलेंज। Diversity is used to hide inequality. I seek your opinion on this. जी, डाइवर्सिटी में अपने आप कोई मतलब डाइवर्स होना अपने आप में कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। और there are lots of things in which I would not want my people to be diverse. For example, I would not want the academic achievement of my students to be very diverse. I would want it to be reasonably okay and within very limited bounds. तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वो चीज़ अपने आप में every and any diversity should be celebrated, no. बट हम यहाँ एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। यहाँ जो कल्चरल डाइवर्सिटी, लाइफ स्टाइल्स की डाइवर्सिटी,
अपने बिलीव्स की डाइवर्सिटी वो बचानी बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बायोडाइवर्सिटी बचाना इंसान के लिए ज़रूरी है। हम पता नहीं क्यों पिछले कुछ सालों से बायोडाइवर्सिटी का महत्व समझ गए हैं, लेकिन ये कल्चरल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इस तरह की डाइवर्सिटी का महत्व आज भी हम नहीं समझ रहे हैं। तो आई एग्री, समटाइम्स इट कैन बी यूज्ड टू हाइड दोज थिंग्स, दैट टाइम इट शुड बी नॉक्ड ऑफ, बट respecting, I mean, unless you have an instance in mind where we can possibly disagree, I see no reason why I should disagree with you on this. I should probably have used a word, deep diversity. There's diversity and diversity. In some ways, for example, Americans celebrate diversity. You know, in the US, you can have all kinds of silly diversity spread all over, and it looks very diverse. In New York City, you can wear all kinds of dresses and they celebrate it. To my mind, that is not deep diversity, because for that culture, it's a very deeply homogenized culture on which finally you sprinkle a bit of shallow diversity. What we should be trying to protect is deep diversity of beliefs, of cultures, where diversity is such that it puts me to some discomfort. That's deep diversity. Whether it's religious, not just dresses, ये dresses वाली जो होती है वो तो सबसे shallow किस्म की है, लेकिन जो जैसे इस टाइम बीफ खाने के ऊपर हो रहा है डिस्कशन, there is this element of diversity which puts us to unease, which makes us uncomfortable. And in a sense, I think when I say in India we respect diversity, I think what I mean to say is that we are learning to live with deep diversities. And that is what Europe of today is unwilling to accept. What we have in France, for example, या जर्मनी में टर्क्स के साथ जो प्रॉब्लम है उनकी, this is basically what they are saying is you are entitled to your beard, you are entitled to these things as long as you become Germans for all practical purposes. This is what they don't want to become. So, yeah, Britain maybe, you know, this whole thing of making them more British. I think this is an inability to live with deep diversity. I think there has, so in a sense my plea is to argue for existence of deep diversity, and I think the success of the Indian democratic experience is that we have lived with deeper diversity than any known nation state has ever lived. Yes, it can sometimes be turned into a justification for inequalities.
and the situation of the Adivasis who have some Adivasi communities, a very small slice of the Adivasi communities, which has lived outside the pale of modern developmental experience. How they should be treated poses this question, where it is in a sense a choice between diversity and equal access to resources and opportunities. So I see the dilemma there. But if we accept deep diversity, then we would also say, in a sense, the choice of how they wish to deal with modern development is something which they should be able to make. And if there are communities that choose to live outside what you and I consider to be fruits of modern development, should it be denied to them? Don't know. So my name is Chet. I thank you for your talk. I had two questions and a genuine question at the end. The first one, sir, is the idea of India that you spoke about. How does it address the pre-colonial past of this country? Because it seems to me that most liberal conceptions of the idea of India. You spoke about Pratap Mehta, Ram Mohan, and perhaps Yogendra. It seems that their idea of India, the temporal marker for them is the post-colonial world. So, थोड़ा सा माइक दूर कर लीजिए आप. The idea of India, what is the way in which this idea of India conceives of the pre-colonial past of this country? That is the first one. And second, sir, in terms of the communities from the other side, you spoke about the Sindhis and thinking of the Tamil perspective. You spoke about how the state deals with some specific tribal communities and thinking of the perspective of the tribals. How do we address that politics that gets chauvinist and regressive? Their politics. And the last personal question, sir, do you miss the classroom and the academy? The answer to the last one should be evident in the last 1 hour. How do we relate to our pre-colonial past? You need a standpoint. There is a lacuna in what I spoke, because what I spoke was about present and future. And any discussion on what is India would normally refer to last 5,000 years, culture, civilization, language, and so on. And I sort of deliberately skirted all that. And it's a legitimate question of, are we avoiding a difficult subject? I hope not. In order to make sense of history, you need a vantage point. And that vantage point is not in history. The vantage point is in present. It is only and squarely from the point of where we happen to be, here and now, that we go back and make sense of history. If we celebrate Akbar and Dara Shikoh, if we celebrate Dara Shikoh and not Aurangzeb, it is not because we were sitting there and judging them. We stand today, and from our vantage point today, somehow Dara Shikoh makes more sense than Aurangzeb did. Now, all I'm trying to do is to define that here and now very carefully, which then gives us a perspective to go back and say, okay, Narayan Guru gives us something unique. Or to go back to 11th century Karnataka, the founding moments of what today is called the Lingayat sect. And that enables me to discover something truly revolutionary there. It is because now I have a vantage point.
Now it's always from here and now. There's no way of avoiding here and now in any reading of history. So what I'm doing is actually not offering any reading of history, and you're absolutely right. All I'm trying to do, I hope, is to clarify the standpoint from which we can turn to history and get something out of it. About chauvinist movements, I celebrate diversity. Does diversity not hide inequality was one question. Does diversity not camouflage chauvinism of the worst variety is another legitimate question. Yes, coming from various regions, coming from different groups, some of these diversities can hide internal oppression. I think for me the way to handle that would be to put same conditions on them. I was in Aligarh University 4 days ago, and I spoke about some of the things I spoke and earned some applause because they wanted someone to say that. So I went and said those things, and they felt very happy about it. At the end of it, I say that should the same not apply to the practice of Islam in India? There has been enormous diversity within the experience of Indian Muslims. Are we not bulldozing that today? Are we not trying to homogenize Indian Muslims today? Is that really a good idea? So it is from that celebration of diversity that actually then I turn around and say, why, if we celebrate this as a great idea for India, why should that not be a great idea for the practice of religions within? So that probably gives us a certain handle of handling what you call chauvinism. To all these practices, we can bring those standards and say, because the trouble in our country is that some of the greatest democratic upsurge in our country has been led by movements which are internally completely undemocratic. And I'm not thinking of Aam Aadmi Party, I'm thinking of BSP and forces of that kind, which is when I had first formulated this. So, but once you say this is what these ideals are, then you can make these movements go through the same test, and they would be found wanting on that. Diversity and बहुत लंबा है मामला ये. I'll just say एक दो लाइन में जवाब दे देता हूँ आपको. I think the existing system of reservations is a partial but necessary response to the social inequalities that we have in our country. It is a system that needs to be fine-tuned and a system that needs to be supplemented. यहीं पे छोड़ दूँ, नहीं तो आधे घंटे का और डिस्कशन हो जाएगा इस पे. शिक्षा को एक डेली नीड्स प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया. ये माना गया कि एक डिटर्जेंट सोप है जो कि हर रोज इस्तेमाल करेगा, कई बार इस्तेमाल करेगा, तो उसको जानबूझकर सरकारी शिक्षा संस्थानों से निकाल कर कुछ लोगों के हाथ में दे देंगे जिससे अच्छा पैसा कमाया जा सके. एक तो ये साजिश है, ये सोची समझी साजिश है. दूसरा इसमें लगता है कि क्या वास्तव में बहुत ही शिक्षित लोग निजी स्कूलों से या संस्थानों से निकल पाएंगे, वाकई शिक्षित हैं, और क्या वो
मैंने दिल्ली सरकार के इन लेजिस्लेशन को बहुत क्लोजली नहीं देखा है, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। जो मोटी बात आप कह रहे हैं वो सही है, दोनों ही चीज़ों में कोई असहमति है नहीं। मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से शिक्षा का निजीकरण हो रहा है ये तो बहुत ही ख़तरनाक है। पूरी दुनिया में कहाँ हुआ है कि लोगों को किसी देश ने यूनिवर्सल एजुकेशन दी हो बिना पब्लिक सेक्टर को यूज़ किए हुए। और सिंपल इकोनॉमिक्स है, मैं तो बार बार पूछता हूँ भैया, मेरे गांव में कौन व्यक्ति प्राइवेट स्कूल, बिल्कुल अच्छी चीज़ है, निजीकरण करो, बहुत अच्छी बात है, मेरे गांव में कौन व्यक्ति प्राइवेट स्कूल खोलेगा जिसमें क्लासेस हों, क्लासेस में कमरे हों, कमरे में नक्शा हो, ब्लैक बोर्ड हो, खेलने के लिए जगह हो और टीचर क्वालिफाइड हों और उसकी फ़ीस भी इतनी हो जो मेरे गांव का गरीब व्यक्ति दे सके। तो आप इस सिंपल इक्वेशन को रख लीजिए और ये एक इम्पॉसिबल इक्वेशन है, ये संभव ही नहीं है कि आप टीचर को तनख्वाह दे दें, क्वालिफाइड टीचर रखें, उसको तनख्वाह दे दें और स्कूल की फ़ीस इतनी रखें कि गांव का व्यक्ति उसको अफोर्ड कर सके। जब ये असंभव बात है तो क्यों हम इस पे बहस करते हैं? अब एक ही इसका रास्ता है कि आप सरकारी स्कूल खोलिए और जो खुले हुए हैं उसके अंदर टीचर अपॉइंट कीजिए, उनको पैसा दीजिए, उनको ट्रेन कीजिए, उनसे काम करवाइए। और उसकी बजाय तमाम किस्म के ऊट पटांग चीज़ों में हम जा रहे हैं। और आपने ठीक कहा, ये जो निजी स्कूल खुल रहे हैं ये क्या दे रहे हैं? कम से कम गांव में जो मैं देखता हूँ ये प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल रहे हैं। एक छोटी सी समस्या है, ना बच्चे को अंग्रेज़ी आती, ना माँ बाप को अंग्रेज़ी आती, ना टीचर को अंग्रेज़ी आती, और वो इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहे हैं। मतलब इससे बुरा मजाक दुनिया में आपने कभी सुना है? आप जैपनीज़ मीडियम में स्कूल चला लीजिए, क्योंकि ना तो अपने को अंग्रेज़ी आती ना जैपनीज़ आती, तो फिर जैपनीज़ में ही चला लेते हैं, अपनी क्या फ़र्क पड़ता है। सो ये तो दिस इज़ एब्सोल्युटली ए क्राइम। और ये कौन सी एजुकेशन दे रहे हैं? और दूसरा तो ज़्यादा गहरा सवाल है, वो पेडागॉजी वगैरह का सवाल है, वो कृष्ण कुमार जी का सवाल है कि ये IIT और IIM में हम क्या शिक्षा दे रहे हैं। वो एक अलग, जिसको हम अपनी शिक्षा के बड़े मतलब बड़े, जिस पे हम गर्व करते हैं, हमारी शिक्षा के शिखर, ये ही कौन सी शिक्षा दे रहे हैं हमारे को? और ऐसा क्यों होता है कि इस देश के लोगों के सामान्य ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं उसको छोड़ के हमारे IIT के लोग सब चीज़ें बनाते हैं। मैं तो कुछ एग्जाम्पल दे के थक गया हूँ। इस देश में ऐसा फ्रिज चाहिए जो बगैर बिजली के काम कर सके। दिस इज़ ए क्राइम नीड ऑफ दिस कंट्री राइट नाउ। फ्रिज चाहिए लोगों को, लेकिन फ्रिज वो नहीं चाहिए जिसमें आप फ्रीज़ कर सकें 15 दिन के लिए खाना। कोई हिंदुस्तानी अपना खाना एक दिन के लिए भी फ्रीज़ नहीं करता है। ये सब यूरोपियन नोशंस हैं, हमें उनके फ्रिज नहीं चाहिए। हमें ऐसा फ्रिज चाहिए जो कि आपका दूध का टेम्परेचर कम कर दे, जो आपकी आज की बनी हुई दाल सब्जी को कल तक रखे। कल से फालतू तो हिंदुस्तान की कोई औरत खिलाएगी नहीं आपको खाना तो वो तो आप बेकार के, ऐसा फ्रिज चाहिए। और वो फ्रिज आपको क्यों नहीं बिना बिजली का मिल सकता? बिना बिजली का फ्रिज बनाना, इतनी इरेटिक बिजली की सप्लाई है इस देश में। अब ये मैं नहीं जानता क्यों ये हमारे देश में इतनी IITs हैं और हम कितना इन पे गर्व करते हैं, और ये ऐसी चीज़ क्यों नहीं बना पा रहे? मेरे ख्याल से इसलिए नहीं बना पा रहे कि ये कोई इस पे शायद कुछ वो नहीं है, इंसेंटिव्स नहीं है इस चीज़ को करने के। कुछ यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ का ये बिल्कुल एडवांस्ड कटिंग एज टेक्नोलॉजी नहीं मानी जाती है ये। और ये कटिंग एज क्या होती है? जो यूरोप के समाज की, नॉर्थ अमेरिका की जो आज सोशल नीड है, वो टेक्नोलॉजी का कटिंग एज है। जो हमारी सोशल नीड है वो कटिंग एज नहीं है। What else is the definition? What makes a technology advanced? Except the fact that it meets the needs of the society at that point. डायरिया पे रिसर्च करना कटिंग एज नहीं है, और ऐसी ऐसी बीमारियों पे रिसर्च करना जो हिंदुस्तान में किसी को होती ही नहीं है, वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी रिसर्च है। तो ऐसी क्या करें इस रिसर्च का, इस एजुकेशन का क्या फ़ायदा? तो ये तो बहुत बड़े दार्शनिक सवाल हैं। जैसे मैंने कहा, आजकल तो मैं बिल्कुल बहुत ही पैदल सवालों से उलझा रहता हूँ कि चलो ठीक है, शिक्षा का एक ही उद्देश्य है लोगों को नौकरी दिलवाना। चलो नौकरी तो दिलवा दो, बाकी सब चीज़ें भूल जाओ। ज्ञान तो वैसे भी हमारी कोई शिक्षा देती ही नहीं है, तो क्यों इन्हीं बेचारों पे ज्ञान का बोझ क्यों डाला जाए? उन्हें भी नौकरी मिल रही है, इन्हें भी नौकरी मिल रही है। जो सेंट स्टीफेंस में आ रहे हैं उनको ही कौन ज्ञान मिल रहा है?
तो ठीक है, फिर नौकरी अगर वो भी दे रहे हैं ये भी दे रहे हैं, नौकरी तो ठीक तरीके से मिल जाए। बिल्कुल थोड़े से वक्त के लिए, वो भी सरकारी प्रोजेक्ट। मैं तो बिल्कुल मतलब आई कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन दिस, यू नो। वन ऑफ द थिंग्स दैट आई फील डीपली एनवियस ऑफ एनी यूरोपियन कंट्री इज देयर किचन टूल्स। रसोई में इतने सुंदर चाकू होते हैं उनके पास, सच में। मैं ये मेरे थोड़े से शौक है लाइफ के, कि मैं जाके किसी भी सुपर स्टोर में देखता हूँ उनके पास टमाटर छीलने के लिए अलग से पीलर है और खीरा छीलने के लिए अलग से पीलर है। एंड यू एक्चुअली नीड डिफरेंट काइंड ऑफ पीलर्स फॉर दीज टू थिंग्स। उनके पास आलू काटने के लिए अलग चीज़ है। और हिंदुस्तान की औरतें प्याज काट काट के जितने आंसू निकलते हैं उससे आप एक छोटा मोटा सागर तो भर ही सकते हो। वो कोई प्याज काटने की साधारण मशीन नहीं बना सकते। और एक बनाई और मैं बड़ा ट्रायम्फेंटली घर पे लेके आया तो मधुलिका ने मुझे 4 मिनट में बता दिया कि ये 6 फुट वाले लोग इस मशीन को चला सकते हैं और कोई नहीं चला सकता। हिंदुस्तान की औरत तो चला नहीं सकती, क्योंकि वो जितना हाइट और वो प्रिज्यूम करती थी, जितना प्रेशर, वो मैं तो कर सकता था, वो कर नहीं सकती। हाइट की प्रॉब्लम, हिम्मत की कमी नहीं थी, हाइट की कमी थी। तो क्या तरह की हम यूनिवर्सिटीज़ चलाते हैं, क्या ये टेक्नोलॉजी है। मैं तो आई एब्सोल्युटली, यू नो, दिस इज सो डिसहार्टनिंग। जो कहते हैं हम आपके पास टेक्नोलॉजिकल मैन पावर है। I mean, we have the largest pool of potential employees for North America, which is fine. You know, they should be welcome. उनसे सब्सिडी लेनी चाहिए और उस पर चलाना चाहिए। Why should we be investing a paisa on these institutions? They give us nothing. They give cheap labor to North America. I'm sorry, I'm just being very, very blunt on these things. Sure. उसको हम आखिरी सेंटेंस, आखिरी वाक्य में आपने कहा कि जब हम इन तीनों चीजों को जो भारत के उसको निकालते हैं और उसको लेकर हम जब बात करें, हो सकता है वो सरहद के पार मिले, शायद वो और हो सकता है 50 साल से इंडियन जो इसके यहाँ वो मंडेला उस वर्ड को इंडियन देना, इंडियन नाम देना कि अब क्या कहीं ना कहीं आपके राष्ट्रवाद या आपसे प्रभाव है, हम इसको जो बेस्ट है, जो बेस्ट एक स्थिति बन के आई है उसको हम इंडियन ही कहते हैं। और मेरे ख्याल से शुरू जो होती है राष्ट्रवाद के किसी भी चीज की, वो बड़े होने की ही लड़ाई होती है। तो इसके ऊपर मुझे थोड़ा क्लियर है। दोनों सवाल दरअसल आपके जुड़े हुए हैं। संकेत और प्रतीक वो बने हुए आते हैं, उस पे आप कुछ उसका कर नहीं सकते, यानी कि उसे आप बदल नहीं सकते। ये तो संयोग है कि हम 1947 हमसे सिर्फ 60-70 साल दूर है, लेकिन जब आप अगर 1250 सन में बैठे होंगे तो 1947 इतना दूर नज़र आएगा कि वो आपके लिए गिवन है। दुनिया में हमेशा काफ़ी कुछ प्रतीक हैं जो बने बनाए आते हैं, जिसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हो। आप उसके अर्थ बदल सकते हो, आप उस बने बनाए प्रतीक में नए रंग डाल सकते हो। आपके झंडे में क्या 3 रंग हैं आप बदल नहीं सकते शायद अगले 100-150 साल तक, लेकिन उन रंगों के अर्थ बदल सकते हो, उन रंगों की महक आप बदल सकते हो, उनके असर को आप बदल सकते हो, उससे क्या उजाला और अंधेरा आएगा उसे आप बदल सकते हो। और यही दुनिया में विचारों का संघर्ष होता है। जैसे इस्लाम में कुरान दी हुई है, लेकिन उस कुरान के अर्थ क्या हैं
इस पे पिछले 1000 साल से बातचीत चल रही है और अगले 1000 साल चलती रहेगी, है ना। तो अगर इस पे बातचीत खुली हो सकती है कि कुरान की इस आयत का मतलब ये है या कि ये है, तो फिर फ़र्क क्या पड़ता है इस बात से कि वो आयत दी हुई है और वो बदल नहीं सकती, है ना। तिरंगे के 3 रंग हैं, बीच में एक चक्र है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें अर्थ तो मुझे देने हैं ना। किसी किताब में लिखा नहीं हुआ कि केसरिया का मतलब क्या है, मुझे बताना है केसरिया का मतलब क्या है। एक लोग एक तरह की बात कहेंगे, मैं दूसरी तरह की बात कहूँगा। विचारों का संघर्ष ऐसा ही होता है, और ये बात जो झंडे के रंग पे लागू होती है, और वो आपने कहा इसके ऊपर कानून बनते हैं, इसको आप इंसल्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है, और इंसल्ट करना भी नहीं चाहिए। मैं उस तरह के कई हमारे दोस्त समझते हैं कि ये कोई बहुत एक ख़ास तरह की प्रोग्रेसिव रेडिकल पॉलिटिक्स समझी जाती है कि आप राष्ट्र के जो प्रतीक हैं उनका खिलवाड़ करें, उनका पब्लिक में थोड़ा सा मजाक कर दें। मेरे ख्याल से बहुत सुइसाइडल पॉलिटिक्स है, कभी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको सिर्फ करना चाहिए राजनीति से। देखिए, एक सुदीप्त कविराज ने एक सुंदर बात कही थी कहीं पे। उन्होंने कहा था कि there are two kinds of quarrels you can pick up. You can quarrel about in a language. You can either quarrel about words, or you can quarrel with alphabet. If you quarrel with words, you are revolutionary. If you quarrel with alphabet, you are mad. आपको अल्फ़ाबेट से कभी झगड़ना नहीं चाहिए। ABCD दिए हुए हैं, अगर आप इससे झगड़ेंगे कि मैं C को तो च बोलूँगा और D को मैं ख बोलूँगा, तो क्या होगा, थोड़े दिन में आपका दुनिया से संवाद खत्म हो जाएगा, लोग आपको पागल डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन आप कहें कि इन शब्दों, इससे मैं अलग शब्द बनाऊँगा, नए शब्द बनाऊँगा, तो आप सुधारक होंगे, क्रांतिकारी होंगे। इसका ध्यान रखना चाहिए। और मेरे को लगता है कि हमारे देश में रेडिकल्स कई बार अल्फ़ाबेट से झगड़ने के चक्कर में आ जाते हैं, जो बहुत ही सुइसाइडल किस्म की चीज़ है। क्यों अल्फ़ाबेट से झगड़ना चाहिए? तिरंगे से क्यों झगड़ना चाहिए? और इसी तरह से जो बीफ ईटिंग फेस्टिवल्स वगैरह हो रहे हैं, माफ़ कीजिए, मुझे बहुत सुइसाइडल पॉलिटिक्स लगती है ना। कई लोग कर रहे हैं और इसे काफ़ी रेडिकल भी बताया जा रहा है हमारे कई दायरों में। मुझे बिल्कुल सुइसाइडल पॉलिटिक्स ये लगती है, ये नहीं करनी चाहिए। सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि हम अभी और इतिहास को भुला नहीं सकते हैं, तो एक चीज़ है जो इतनी स्पष्ट नहीं है के लिए, वो ये कि आज से 20 साल पहले हमने बहुत बड़ा कर्जा लिया था प्राइमरी एजुकेशन देना शुरू किया था कई देशों में। जिससे सर्व शिक्षा अभियान चला, उसी वजह से नौकरियां भी मिली प्राइमरी एजुकेशन का। पर अब वो 20 साल आ रहे हैं जब से हमें तो कर्जा वापस करना प्रयास किया। तो ये जैसे आपने कहा कि यूरोप का निकल करके विकास करना नहीं हो सकता, तो ये यूरोप का नकल करना इसको नहीं कहा जा सकता। शायद ये मजबूरी कही जा सकती है कि हम जो है, क्योंकि हमारा देश संविधान में जो बातें प्रॉमिस की हुई हैं वो नहीं कर पा रहे, तो इसलिए शायद इस तरह से हो। पर इस तरह से भी अगर नहीं हुआ तो फिर आप सोचते हैं कि कोई और रास्ता है। अंतिम सवाल है। आपकी बात से सहमत ही हूँ, मतलब ज़्यादातर सवाल ये सहमति के दायरे के सवाल हैं, इसलिए बहुत कहने को नहीं है। एक छोटी सी असहमति की मैं गुंजाइश देख रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ उसे दर्ज करवा दूँ। वो ये कि हमारे कई दोस्त समझते हैं कि शिक्षा में हमारे देश में जो कबाड़ा हुआ है वो जो विदेशी अनुदान और WTO वगैरह की वजह से हुआ है। मैं उस पर थोड़ा कम वज़न देता हूँ। मुझे लगता है कि उस कबाड़े की पूरी जिम्मेवारी हमें मुख्यतः अपने इंटरनल मैकेनिज़्म पे देनी चाहिए। और वो जो विदेश से जब DPEP वगैरह सब आए थे, तब जो कर्ज वगैरह लिए गए थे, वो एक तरह का, वो उसका प्राइमरी कॉज नहीं मानता मैं।
दरअसल हमारे देश के पॉलिटिकल एलीट ने पहले 15-20 साल के बाद ही इस देश के हर बच्चे को शिक्षा देने का संकल्प छोड़ दिया था, और ये जो एम्बिशन थी कि हमें एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना है, वो समाप्त हो चुकी थी। और 70s के बाद से हमारे एलीट का सेल्फ इंटरेस्ट भी हमारी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन से तो हट चुका था, वो तो एग्जिट कर चुके थे तब तक। और ये दो चीज़ अगर हो जाए, अगर आपका आइडियोलॉजिकल संकल्प खत्म हो जाए और आपके वेस्टेड इंटरेस्ट उससे डिस्कनेक्ट हो जाए, उसके बाद वही होगा जो हमारे यहाँ पे हुआ। फिर उसमें बात जब निकलती है तो बहाने बन जाते हैं, फॉरेन एड भी आ जाती है, ये भी आ जाती है। कल को फॉरेन एड सारी ख़त्म हो जाए, WTO में हम कुछ भी साइन ना करके आए नैरोबी में, तब भी हमारा पॉलिटिकल एलीट एग्जैक्टली वही करेगा जो आज वो कर रहा है। तो थोड़ा सा बारीक डिफरेंस है हमारी बात में, बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके। मेरा ईमेल आईडी यदि आप कांटेक्ट करना चाहें तो मेरा ईमेल आईडी वही है जो आप गेस करेंगे, yogendra.yadav@gmail.com। इट्स द सिंपलेस्ट ईमेल आईडी विच यू वुड हैव गेस्ड। और जब इतना आया हूँ, इतना किया, तो एक 15 सेकंड का विज्ञापन भी कर दूँ कि इतना तो हक बनता है ना कमाई का। एक फेसबुक है मेरा, योगेंद्र बाई बाई, उस पर आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो अपने फ्रेंड से शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू। Thank you so much, sir, for coming here and patiently engaging with us. You beautifully articulated some of the thoughts which we have in bits and fragments, but you cohesively put them together and provided us a framework to think with if we think of what it means to be an Indian. And I'm just going back to this idea with this belief, which is even stronger, that we have to keep striving to attain Swaraj in ideas. Thank you. Thank you. Also, I would like to take this moment to thank Manish and Anupam from Swaraj Abhiyan, who have played an instrumental role in making this happen. Who arm twisted me to come here. Yes. And Poonam, who